Hello everyone, this is Shubhangi Agarwal, and as I told you that I will be taking SM subject, so here I am. So first of all, I just want to say that don't read this subject, don't study this subject like a student. The student who feels theory is a boring subject, a student who just do not want to study right now and thinks that there is a lot of time, which is not there actually, and the student who feels like theory to hai, like we will do it, just we need to just mug it up. It's not that theory, it's not that subject that you have to mug it up, okay? So it is that subject. Just bring that mentality that you are a business tycoon. Like, yeah, I am an entrepreneur, I am gonna start up, I am gonna open my organization. So what are the things, what are the key things that I have to keep in mind to enter the market? What are the things that I have to take, like what are the things that I have to look into my competitors, and how I will grow in this industry? That are the stuffs that are written over here. So just take this subject very practically. It's actually very practically, that it is the subject which is implied everywhere. Like whenever you step out of your home, the every business shop to the billionaire, they all uses the strategical moves and strategical analysis in some वे और द अदर. ठीक है, सो डरना नहीं है, ठीक है, हम लोग को अच्छे से करना है सब्जेक्ट, एंड डोंट वरी यार, हो जाएगा, ठीक है. सो हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. सो आई होप कि मतलब इंग्लिश हिंदी चलेगा. आई फील लाइक दिस इज़ द थिंग कि हो सकता है, राइट, थोड़ा हिंदी भी चल सकता है ना, आई होप. ठीक है, सो हम लोग डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी. बट हाँ, उससे पहले मेरे को आप लोग को ये बताना था कि आप जो है ना कुछ मटीरियल्स अपने साथ लेके बैठिए. Just take this SM ICI material. Trust me, this is a very good material, and actually this is the only material which we study in our institute material also. Just don't think that that's something different. That's actually that's a totally the same thing, the copy paste thing. Just you're good with good paper and good presentation. Not actually presentation is not also there, just highlighting some things and all the stuff, but that we can do ourselves also, right? So just take your book. If you want to take your notebook, like I prepared some notes so that when, like, as I am teaching you, so I can just see those points, and even you can also write the gist of the chapter and the things that you need to understand, and you need to have the proper understanding of it. Just note it down. That will actually help you, like, so just do it, and just take a water bottle also. I will recommend, like I have taken also. So we will also drink water when I will be teaching, and not teaching, like when I will be discussing. So yeah, so I will request you not to just lay down and just see like a revisionary video or something like that. It's like a two-way thing. Like, I hope you are also sitting now, and we both are studying now, right? So just let's get started now without further time wastage, and I will try to do it very properly. Yeah, so first of all, ऐसा मैं आपको जैसे बता रही थी कि डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हम पढ़ने जा रहे हैं. तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, अब यार कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होता क्या है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जो है ना, वो ना, लाइक, अब ये तो है नहीं कोई मोनोपोली मार्केट है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लीडर है, एक ही सब कुछ होने वाला है. ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर. तो मतलब अब जो है तुम ये देखो कि इतना ज़्यादा MNCs का आना, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन कई मतलब हो चुके हैं, ऑनलाइन इतना ज़्यादा हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो सकता है, हो चुका है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. तो अगर तुमको इस मार्केट में रहना है, इफ़ यू वांट टू स्टे इन दिस मार्केट, तो तुमको अपना कुछ एक यूनिक चीज़ करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि अब जो है सारे के सारे, अब ऐसे टाइम चेंज हो गया तो सारे के सारे जो पुराने वाली जो शॉप्स थी वो बंद हो चुकी हैं एंड जो नई चीज़ों में शिफ्ट हो गए हैं. ऐसा तो नहीं है ना. लाइक, इट्स नॉट द केस दैट द ग्रोसरी शॉप नियर माई हाउस इट्स शट डाउन बिकॉज देयर इज अवेलेबल थिंग लाइक बिग बास्केट एंड वॉट एवर, ग्रोफर्स and all the stuff. It's not the stuff, because they have some unique things and they have some advantage over there that they have understood that customers want, so that they can actually compete with the online stores. If I want to buy a bread, if I want to purchase a bread immediately, then I'm not gonna order it. I will just go to my nearby shop and just take it. So that is the little bit advantage that the offline and these retailers gives us, that they are actually very near to our home, and we can actually access them very easily. So that's a advantage, a little advantage to over the online stuff, right? So that's a thing that we need to understand. And actually every business, when you see that, if you will study this subject,
just consider yourself as a businessman or business person, and just think कि okay, if I have to do a business, if I want to grow in such a way, then what will I be doing? When you will realize that okay, what procedures and what thought process I was following, the same is written over here with different terminologies. Maybe obviously it's a proper that stuff are study thing, so there will be a good English and good language, everything, but the if you boil down, the matter will remain the same. So just get that business spirit in yourself. Come on, we are business tycoons now, right? So yeah, so as I have told you in the first paragraph, okay, let's get started with the introduction part. Okay, so in this part also I would just like to tell you that they have categorized this paragraph. So they have categorized it's like from a very business point of view, then the external environment, then the society and the stuff. They have just divided the stuff like that, right? So it will help you to actually keep in mind, keep you remember that what was the stuff. If you will just categorize, if you will split the part, and if you will split the theory, so just try to highlight the stuff which are actually making that point different. So like in the first point, it's written that the business environment that is very highly dynamic. What does that highly dynamic mean? Highly dynamic means मतलब that कि वो बहुत जल्दी constantly मतलब चेंज हो रहा है. मतलब अभी हमको पता नहीं कि आज मार्केट जो है वो कल भी ऐसा रहेगा. अगर तुम देखो तो यार, no one actually imagined COVID in this year, right? Like apart from from the last November. Before that no one actually imagined कि ऐसा कुछ हो सकता है कि that people have to stay at home and उनको वहीं से कुछ काम करना पड़ेगा. अगर आज भी लोग जो बिजनेस मतलब जो रिटेलर्स हैं, अगर वो थोड़ा सा ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं होंगे, दे वोंट सर्वाइव. उनको इवॉल्व होना पड़ेगा ना एक्चुअली, मतलब उनको कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनेमिक. वो डायनेमिक है और कंटिन्यूसली इवॉल्विंग हो रहा है, तो उनको समय के साथ चेंज होना पड़ेगा. ठीक है. सेकेंड चीज़ क्या आती है, सेकेंड चीज़ आ जाती है कि इसमें जो चेंजेस जो हैपन हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो जो है आपको चैलेंज करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को टू फाइंड नोवेल एंड यूनिक स्ट्रेटजीज टू रिमेन इन द बिजनेस एंड सक्सीड. तो मतलब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे ना आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को ना मतलब एक तरह से वो चैलेंज करता है कि आप ऐसा करो कि मतलब वरना तो आपको अगर बिजनेस में रहना है, यहाँ पर इंडस्ट्री में रहना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके कुछ यूनिक हो. अब एक बात बताओ, एज अ कस्टमर ऑल्सो वाई विल यू गो टू अ पर्टिकुलर शॉप ओनली? बिकॉज वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा होगा ना जो दूसरा उनके साइड वाला शॉपकीपर है वो नहीं दे रहा होगा. हम लोग तुम जब भी बिजनेस करने जा रहे होते हैं हम लोग, तो आपको एक मेंटालिटी लेके आने मतलब लानी चाहिए कि अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं क्या मांगूंगा उनसे, मैं क्या उनसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये होनी चाहिए चीज़, ये होनी चाहिए. तो वो सब चीज़ें अगर होंगी आपके माइंड में तभी आप कर पाओगे, है ना. तो फिर अगर जैसे एक्सटर्नल चल रहा है, चेंज हो रहा है, तो अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो वो चैलेंज करता है ऑर्गेनाइजेशन को. वो कहता है कि अगर सपोज अभी कोविड वाली चीज़ें ले लेते हैं हम लोग, तो वो एक चैलेंज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को. अगर ग्रो करना है और ज़्यादा ग्रो करना है तुमको, तो ये नहीं कि तुमको अब फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी दिल्ली में या कहीं. तुमको अब क्या करना पड़ेगा, तुमको ऑनलाइन अपना एक सेटअप करना पड़ेगा, एक ऐप बनाना चाहिए तुमको, ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से तुम अपने एक यूनिक स्ट्रैटेजीज तुमको लेनी पड़ेंगी कि हाँ मेरे अंदर क्या सबसे अलग क्या है मेरे अंदर जिससे कस्टमर मेरे पास आए. ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. ठीक है. एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर. अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बिजनेस, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नाउ द वर्ल्ड, राइट. तो वर्ल्ड, अब यार ये बताना चाह रहे हैं वर्ल्ड छोटा होता जा रहा है, तो पता ही है. एंड उसके बाद फिर इसकी वजह से कंपटीशन इतना इंक्रीज होता जा रहा है. ये कंपटीशन जो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से वो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर देता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर आपको रहना है इस बिजनेस में, अगर ग्रो करना है, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज लेनी पड़ेंगी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज आपको बनानी पड़ेंगी. ठीक है. तो यही सब बता रहे हैं. और ये सब हम जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली क्या, ये मैनेजर को सोचना चाहिए, मैनेजर को ये सोचना चाहिए. उसको जो हम सोच रहे हैं वो क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. और जो मैनेजर्स को ये जब अप्लाई करेंगे अपने मैनेजमेंट में, तो वो स्ट्रेटेजिकली जब मैनेजमेंट मतलब अपना वो एक्शंस लेंगे तो उसको बोल देंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है. तो वो ये सब उनका माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हो. ठीक है. सो आई थिंक इंट्रोडक्शन इज़ वेरी क्लियर नाउ लेट्स कम टू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी. Look, thus the same matter is there. So even if I am reading from something different, like sometimes don't think that I am missing anything out from the study material. Actually this study material is very helpful,
but since this is my first time reading this study material, although I wanted to read it, now I'm given the opportunity, so that's really good. Just don't feel the thing कि study material अच्छा नहीं है यार, अच्छा ही है, इससे ही पास होते हैं यार, मैंने तो फाउंडेशन इससे ही किया था. So just don't think like that. ठीक है. So competitive strategy of a firm evolves out of consideration of several factors that are external to it. यार हम लोग ना अब जैसे एक्सटर्नल जब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हम लोग ना एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से तो कर रहे हैं यार, इंटरनली तो है नहीं कुछ अपना. जब बाहर की जब हम चीज़ें देखते हैं तभी तो हम सोचते हैं ना कि अच्छा कॉम्पिटिटिव हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि अच्छा राइवल फर्म क्या कर रही है, इंडस्ट्री में क्या कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं. ठीक है. सो ये चीज़ है. एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द फर्म. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को मतलब करता है. आई एम सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी बोल रही हूँ, बट आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन इन सच अ वे मोर. आई होप द पीपल आउट देयर आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली. सो थर्ड पॉइंट इज़ द इकोनॉमिक. अब हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, बट अब थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में ये है कि जो इकोनॉमिक और जो टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो हैं, अब इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब जो कौन सा फैक्टर, कौन सा एलिमेंट है जो कि हमें मतलब इफेक्ट करता है, किस चीज़ में इफेक्ट करता है? हमारे लिए क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़, एंड हमारे रिस्क भी वही क्रिएट करता है. ये लग चलो ठीक है, मैं बताती हूँ. ऐसे एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. ओके, तो सपोज दिस इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब इसमें से भी कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हमको इफेक्ट करता है? दैट आर, ये एक तो आपका इकोनॉमिक एंड एक टेक्नोलॉजिकल. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक में क्या? इकोनॉमिक में लाइक जो इन्फ्लेशन है, ये सब चीज़ें हो गया, आपका पॉलिसी चेंजिंग वगैरह, टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई, ये हो गया, तो इनसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती है, बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा आ जाता है. सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, लाइक ऑब्वियसली सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं. आई डोंट थिंक सो इसमें इतना फर्दर मतलब मैं आपको डिटेल में बताना इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट आ जाता है द फर्म मस्ट आइडेंटिफाई इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. उसको ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो जस्ट just listen it properly. तो इसमें what they are saying कि every there are 3 type of people or there are 3 type of organization in every industry. So what are they? Like first they will be like a business leader will be, they will set the trend, they will set the fashion, or what they will set what the new strategies will be followed. So they are the business leader. Second will be challenger. Now challenger will be they are those organizations who think okay, so they have launched one thing. Suppose Airtel has launched one thing, so okay, अच्छा इससे तो बेटर ही करना है, तो that's like challenges. तो मतलब उससे बेटर करना एंड उससे उसका मतलब उसको चैलेंज करना. तो एक तरह से ये वाली पर्सनालिटी टाइप आपका होता है. पर्सनालिटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का ये टाइप होता है. एक होता है फॉलोअर कि अच्छा चलो उन्होंने ये कर लिया, सो वी विल डू ऑल्सो द सेम थिंग. ठीक है. सो ये वाली जो आपकी मार्केट पोजीशन जो है, यू हैव टू कंसीडर दीज मार्केट पोजीशन वाइल एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटिव strategy and while preparing the competitive strategy. Okay, so yeah. Now why it is important? This is important because it gives competitive advantage, increase market share and beat competition. इससे क्या होता है ना, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि हमको ऐसा होता है कि अच्छा यार इतना हम लोग सोच रहे हैं, हम हर चीज़ हमने पहले से एंटिसिपेट कर रखी है कि ये हमारा राइवल ये करने वाला होगा, ये फर्म में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो ऑब्वियसली हम लोग इनसे तो आगे होंगे ना. तो एक तरह से हमको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करते हो तब उससे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है. और इंक्रीज इन मार्केट share. When you will know everything about the market, then you can withstand the market position. तो वो भी है. एंड उसके बाद आप बीट कर सकते हो कंपटीशन को. ठीक है. और ये कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए आपको अप्रोच क्या रखनी पड़ेगी कि अट्रैक्ट करो कस्टमर्स को, विथस्टैंड करो कॉम्पिटिटिव प्रेशर को, एंड स्ट्रेंथनिंग करो हाँ मार्केट पोजीशन को. ठीक है. So I hope this thing is very clear. So ऐसा ना, I will suggest you one thing. Whenever you read the stuff, whenever I tell you the stuff, the 2 paragraph or something like that, just pause me and just read it once more, so that it will remain in your mind forever. Okay. So now the second thing is second heading which we are talking about now, that is competitive landscape. तो अब यार competitive landscape क्या होता है? Competitive landscape is a business analysis. So okay, I will be reading the stuff now since I have not read it, but I will be reading the stuff also, so that we both will study and we will understand the concept now. So competitive landscape is a business analysis which identifies competitions either direct or indirect.
ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो होता है ना, दैट इज़ अ बिजनेस एनालिसिस जो कि आपको आइडेंटिफाई करता है कॉम्पिटिटर्स को, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो हम ना लाइक सपोज हमने अभी लाइक बिजनेस में आए हम लोग, ठीक है, तो अब ना हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ओके सो हु आर कॉम्पिटिटर्स। जब तक तुमको अपने कॉम्पिटिटर्स पता ही चलेंगे, तुम लड़ोगे किससे? तो मतलब किससे बेटर प्रूव करना चाहोगे कस्टमर, तुम किसके लेना चाहोगे, या किसके किसके तुम कस्टमर चाहोगे कि मतलब उनके पास ना आए मेरे पास आए। तो तुमको पता होना चाहिए ना हु इज़ दैट इंडस्ट्री, या सॉरी हु इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको वो पहले पता होना चाहिए। तो लैंडस्केप यही होता है कि आप अपना बिजनेस का एनालाइज करो, चाहे वो आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग the competitors, and at the same time it permits the comprehensive version, mission, core values, niche market, strength and weaknesses. Okay, so what is it? Let me just tell you. Wait a minute. understand करो competitors को. Okay, and at the same time it permits तो पता है इसमें क्या होता है, ये लैंडस्केप जो है ना वो एक तो आपको बताता है, जैसे एज आई टोल्ड यू, कि आपको आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना होता है अपने कॉम्पिटिटर्स को, बट उसके साथ ही साथ इट परमिट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर विजन। मतलब ना आप हमको पता चलता है अच्छा कि मतलब कि उनका क्या विजन है, उनका क्या मिशन है, उनकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, उनका नीश मार्केट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या, उनकी वीकनेसेस क्या है। बिकॉज पता है हम लोग वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, लाइक व्हेन वी कम टू नो देयर विजन्स, देयर थिंग, देयर नीश थिंग, then okay we can add certain values to us so that we conquer the market. बिकॉज जब तक उनके बारे में नहीं पता होगा, हमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम अपनी कैसे एडिशनल कोई पॉइंट बनाएंगे जिससे हम लोग मार्केट में स्टे करें, राइट। सो नाउ द थर्ड थिंग इज कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स एन एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को लैंडस्केप जो है वो रिक्वायर करेगा कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस तो आई थिंक उससे ही आएगी जब आप रिसर्च वगैरह करोगे। तो in-depth investigation and analysis of firms' competition allows it to access the competitors' strengths and weakness in the marketplace, and it helps it to choose and implement effective strategies that will prove its competitive advantage. Okay, तो यार देखो, आई एम रीडिंग द स्टफ ऑल्सो सो दैट वैन यू विल लिसन द कॉन्सेप्ट, वैन यू विल लिसन दोज लाइन, कि आपके ना माइंड में इट गेट्स रिटेन, एंड ऑल्सो आई हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्टफ। सो हाँ, तो यार यही है यार, पता है इसमें तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में तो बस यही हम बात कर रहे हैं कि क्या जो इन डेप्थ जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, एनालिसिस जो हो रहा है, मतलब ये सब कुछ, और कैसे मतलब ये हमको हेल्प करेगा हमारी चूज़ करने में और इम्प्लीमेंट करने में स्ट्रेटजीज जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको दे सकते हैं। ठीक है, तो यार मतलब इससे मेरे को एग्जांपल याद आता है हुंडई का। ठीक है, एक टाइम था जब हुंडई, मतलब इसमें आपके एक स्टडी रियलिटी बाइट में भी लिखा हुआ ही है, तो उसमें क्या है ना कि हुंडई जो है वो आया था मार्केट में, इंडियन मार्केट में। उसने देखा कि यहाँ पर मारुति का बहुत ज़्यादा बिकता है, मतलब सामान। उसने सोचा यार मतलब क्या करना चाहिए मेरे को कि मैं मारुति का मतलब ले लूँ मार्केट, है ना, मैं मतलब उसके कस्टमर्स को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। हमने पढ़ा था ना क्या करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, विथस्टैंड करना है, ये सब कुछ। तो उसने सोचा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा ओके, सो मारुति की स्ट्रेंथ क्या है। मारुति की स्ट्रेंथ है कि वो जो है मतलब कि जो मिडिल क्लास है उन लोगों को, और जो लोअर क्लास है उन लोगों को मतलब अच्छे से मतलब वो करता है, केटा करता है। ठीक है, मतलब उन लोगों के लिए बनाता है वो अपना सामान, एंड इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इकोनॉमिकल में बेचता है वो सामान अपना। उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो उसने ये सब थोड़ी स्ट्रेंथ उसकी देखी, उसकी वीकनेस भी देखी। वीकनेस उसने देखी कि ना मतलब कि लोग जो इंडियंस होते हैं ना, हम लोग, तो उनको ऐसा होता है कि फॉरेन चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो थोड़ा ऊपर से वो वाली ना मारुति ऐसा फील नहीं देता कि बहुत रिच है। हुंडई थोड़ा मतलब करता है, आई डोंट नो टुडे इतना ज़्यादा ये है नहीं रेलेवेंट, बट पहले ऐसा था कि हाँ मतलब बाहर से एक कंपनी आई है तो मतलब लोग उसमें तो उन पर ज़्यादा मतलब विश्वास करेंगे। तो वो चीज़ उनका वीकनेस जो थी वो उन्होंने अपनी मतलब स्ट्रेंथ में गेन करा। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा ये वाला रियलिटी बाइट, आई डोंट थिंक सो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ठीक है, तो अब ना इसको भी आप ना जैसे पढ़ते हो ना, ये वाले स्टेप्स जब पढ़ते हो तो हमेशा ना किसी एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ा करो, तो आपको फिर काफ़ी आसानी रहेगी उसे याद करने में। एंड स्टेप्स में क्या करो, आप इसके जो हेडिंग्स हैं उनको याद कर लो, अंदर का मटेरियल याद मत करो, उसको अपने हिसाब से लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिशन। सेकेंड,
मैं पहले आपको सिर्फ हेडिंग्स बता देती हूँ, फिर मैं अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स ओके, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, पुल ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर। एज आई टोल्ड यू, जैसे हुंडई वाले केस में कि आइडेंटिफाई करो आपका कॉम्पिटिटर कौन है, मारुति है उनका, उसको अंडरस्टैंड करो कि यार क्या है, कि उसके लेवल में क्या, वी हैव अंडरस्टूड दैट मारुति हैज गेन्ड ओके, तो उसका अंडरस्टैंड करो। अच्छा, उसकी मार्केट में इतना ज़्यादा उसका शेयर है, उसका ये सब कुछ है, तो मतलब हमको ना उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इन एंड आउट क्या है। फिर आप अंडरस्टैंड करो कि डिटरमाइन करो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था। फिर वीकनेसेस, अपना ये लास्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं ना, पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर। सो व्हाट डज दिस पॉइंट मीन? दिस पॉइंट मीन्स कि यू नीड टू सी होलिस्टिकली द लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन। इट्स नॉट लाइक कि फॉर द स्ट्रेंथ थिंग you are having okay, so for strength I will apply this strategy, but for weakness I will apply this strategy. This is not the case. For strength, for weakness, for the understanding, for both, for all over the stuff, you need to apply a single strategy, or the holistic strategy that will work for all. Okay, so that's the thing. Now let's get started कि इसमें strategic analysis. I hope कि वाला clear हो गया होगा point. ऐसा कुछ है तो नहीं, मतलब स्टेप्स है, वैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट मतलब हो सकता है ये वाला, बट ठीक है, इतना आई थिंक आ जाएगा। अब इसका अंदर का मैटर रीड कर लेना, हो जाएगा। फिर अब क्या है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का क्या है, ठीक है। लेट्स मतलब रीड की क्या चीज़ है ये, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ, एक मिनट। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशंस आर इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कंडीशंस एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एक मिनट जस्ट। सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम लोग पहले थोड़ा वैसे बात करते हैं, लाइक बुक से अपार्ट मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या है कि यार देयर इज़ नो इंट्यूशन वर्क। लाइक ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपको सपना आएगा रात को कि ऐसे ऐसे होने वाला है, लाइक कि मतलब आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऐसा मूव लेने वाले हैं, ये कुछ ऐसे तो कुछ होने नहीं वाला है ना। आपको उसके लिए मतलब क्या होगा कि आपको एक स्ट्रेटेजिकली पूरा मूव लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक दिन की तो बात है नहीं, ये कोई अपना डेली स्केड्यूल तो है नहीं कि आज हमने सोचा ये करेंगे, कल से अपना इम्प्लीमेंट कर लिया। दिस इज समथिंग वेरी बिग, this consists of a very huge investment, so many people are involved, so it's not about a one day process, it will take time। so पहले क्या होगा ना कि पहले जो है आपको एक दिन की कोई प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें कंटिन्यूसली आप देखोगे कि हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हमको लग रहा है कि हाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो एक तो आपको ना इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डेटा को। कैसे? पहला तो आपको करना पड़ेगा इंडस्ट्री का और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस का, ठीक है। सो इंडस्ट्री से कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड मार्केट पोजीशन। यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मतलब कि अपना तो आपको कुछ पता नहीं है, कि अपने कोई वो पता नहीं कि हमारी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी खुद की क्या वो एडिशनल पॉइंट है, हमारे में क्या वीकनेस है जिसकी वजह से हमारा मार्केट नहीं चल रहा। हम मतलब कॉम्पिटिशन में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट हम सबके बारे में हम पता कर लिया, हमने सबके बारे में पता कर लिया कि हाँ यार इनका ये चीज़ अच्छा, इनका ये। अपने ऊपर भी तो वर्क करना पड़ेगा ना, पहले आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि ओके कि अगर सपोज मेरे पास एक टीम है, मैं अभी एक सेटअप करने वाला हूँ, स्टार्टअप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे पास सबसे अच्छी टीम है, सही है, मेरे पास एक फ्रेश आइडियाज़ हैं, मेरे पास एक नया आई हैव समथिंग न्यू देन द ओल्ड कॉम्पिटिटर्स, बट मेरे पास क्या क्या चीज़ नहीं है, सपोज मेरे पास नहीं है, मेरे पास अपने लिए मेरा स्ट्रेंथ तो ये सब कुछ हो गया कि टीम मेट्स एंड मेरे पास फ्रेश आइडियाज़ हैं, बट मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास मार्केट की कस्टमर्स नहीं है, वो सब जो है मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास हैं। तो वो सब चीज़ें आप अंडरस्टैंड करोगे, फिर आप इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करोगे, एंड देन आप कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को अंडरस्टैंड करोगे, तब ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है, ऐसा नहीं है। ओके, सो या अभी क्या होता है यहाँ पर कि और एक और चीज़ आपको ना कस्टमर का देखना पड़ेगा, क्या कस्टमर क्या एक्चुअली वो चाहता है। तो अगर बिजनेस में आपको रहना है तो कस्टमर की नीड्स को तो आपको देखना ही पड़ेगा, राइट। सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम लोग ये पढ़े थे, तो चलो मैं आपको ना सवाई से पढ़ती हूँ। सो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज़ नॉट अ टास्क इन विच मैनेजर्स कैन
can get by with intuition, opinions, instincts, and creative thinking. Judgments about the what strategies to pursue need to flow directly from analysis of firm's external environment and its internal resources and capabilities. Yeah, whatever I have told you, ये वहीं पे ही है, उतना ही है ये, ठीक है. उसके बाद जो एनालिटिकल जो सीक्वेंसेस हैं इज़ फ्रॉम दिस ओके. आई थिंक आप भी ये वाला प्लीज़ पैराग्राफ पढ़िए 2.5 पे. मैं भी वो पढ़ती हूँ, सिंस वी बोथ आर स्टडिंग टुगेदर, इट्स नॉट दैट कि आई एम जस्ट टीचिंग. सो लेट्स जस्ट रीड इट. एनालिटिकल सीक्वेंस है फ्रॉम to evaluation of alternatives to choice of a accurate diagnosis of the company's situation is, look, underline this thing, accurate diagnosis of the company's situation is necessary for managerial preparation for deciding on a sound long term direction, setting appropriate objectives and crafting a winning strategy. Without perspective understanding of the strategic aspect of the company's external and internal environment, the chances are greatly increased that the managers will finalize a strategic game plan that does not fit the situation well, that holds little prospect for building competitive advantage and that is unlikely to boost company performance. ठीक है यार, अगर हम जो है ना या मतलब अगर अच्छे से हमने खुद को एनालाइज नहीं किया और बाहर को नहीं करा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, मैनेजर्स कोई भी एक स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर लेंगे, बट क्या पता वो मतलब फिट ही ना हो, क्या पता वो जो है इतना बूस्ट ही ना करे इंपॉर्टेंस, मतलब वो कंपनी की परफॉर्मेंस को. ठीक है, आई अंडरस्टैंडिंग द स्टफ लाइक दैट. तो मतलब आपको दिस इज टेलिंग अस कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल्सो, एंड मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. ठीक है, इश्यूज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कंसिडर करने चाहिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए. ठीक है, स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैंने आपको आई थिंक ये वाला टॉपिक स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक दिन की बात नहीं है. इट्स नॉट कि टुडे आई विल डिसाइड दैट आई विल डू दिस फ्रॉम टुमारो एंड I am gonna work like that. This is not like a daily schedule, right? As I told you, right? So कि मतलब इसमें ना टाइम लगता है. इसमें क्या होगा कि दे आर डिफरेंट फोर्सेज दैट ड्राइव एंड कॉन्स्ट्रेन स्ट्रेटजी एंड दैट मस्ट बी बैलेंस इन एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन. क्या पता बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, डिफरेंट फोर्सेज होती हैं कि जो कि ड्राइव करती है, कॉन्स्ट्रेट करती हैं इस स्ट्रेटजी को, जो कि जो है ना दैट जो कि बैलेंस होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए. ठीक है, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ strategic analysis is to consider the possible implementations of routine decisions. ठीक है, रूटीन डिसीजन जो है उनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए और कैसे मतलब करना होना चाहिए. उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ अ फर्म एट अ पर्टिकुलर ऑफ point of time is result of a series of small decisions taken over an extended period of time. A manager who makes an effort to increase the growth momentum of is materially changing strategy. या मतलब ना ऐसा होता है कि आपको ना मतलब कोई ऐसा नहीं, स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा रिजिड थिंग है. हमारे तो कोई कॉन्सेप्ट मतलब कॉमर्स में ऐसा कोई चीज़ तो होती नहीं कि जो बिल्कुल ही फिक्स्ड होती है, लाइक एज साइंस की तरह कि हाँ यही होना है, कोई ऐसा तो है नहीं. हमारे तो ऐसा होता है कि यार शॉर्ट टर्म जो चीज़ है, ऐसा अभी तुम स्मॉल डिसीजन ले रहे हो, उसका जो तुम स्ट्रेटेजिक कर रहे हो, लाइक मतलब एट अ रिजल्ट ऑफ ठीक है टेकन ओवर अ पीरियड. तो आप जो क्या मतलब जो छोटे छोटे जो डिसीजंस लेते हैं वो एक बड़ा डिसीजन के लिए मैटर करता है. और ना मतलब जो मैनेजर है ना उसको एफर्ट लगाने चाहिए कि वो एक ना ग्रोथ को मोमेंटम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ मटीरियली चेंजिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि यार आज मार्केट की कुछ और डिमांड है और आप उसके हिसाब से कर ही नहीं रहे हो काम, तो आपको अपने लिए चेंज भी होना पड़ेगा. इवॉल्व तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्ट्रेटजी को इवॉल्व तो होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने जो अभी एक साल पहले एक स्ट्रेटजी बनाई थी पर आज वो काम नहीं कर रही तो मैं कुछ नहीं करूँगी. आज मैं उसको चेंज करना पड़ेगा, मेरे को इवॉल्व करना पड़ेगा. मेरे को कुछ गलत हो रहा है तो मेरे को उसको लर्न करके मेरे को अलग वे से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स. द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मैचिंग द इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज. In reality, as perfect match between the two may not be possible.
यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइक इंटरनल फैक्टर्स को भी आपने अच्छे से कर लिया और मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों एक साथ ही आपके चल रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा, राइट। इन रियलिटी अ परफेक्ट मैच बिटवीन द टू मे नॉट बी इवन फीजिबल, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन्वॉल्व अ वर्केबल बैलेंस बिटवीन डाइवर्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग considerations. A manager working on a strategic decision has to balance opportunities. Just underline this thing कि मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, मैनेजर जो वर्किंग जो ना और ना स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा उसको क्या क्या बैलेंस करना पड़ेगा, उससे अपॉर्चुनिटी करनी पड़ेंगी, उससे ना इन्फ्लुएंसेस और उसको कॉन्स्ट्रेन करना पड़ेगा। पेंसिल से करना, पेंसिल से करना कैसे, लाइक दिस ओके, राइट। There are pressures that are driving towards a particular choice as entering a new market। तो वो ना मतलब बहुत सारे प्रेशर्स होंगे यार, जिसकी वजह से आपको ना पर्टिकुलर चॉइस, आपकी हर चॉइस के ऊपर ना बहुत सारे प्रेशर्स होंगे ना, उसको हिसाब से आपको एक अच्छे से बैलेंस करके आपको ना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली देयर आर कॉन्स्ट्रेंट्स दैट लिमिट द चॉइस सच एज एक्जिस्टेंस ऑफ अ बिग कॉम्पिटिटर। मतलब ना कभी कभार जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर ना, प्लीज़ अंडरलाइन दिस स्टफ ऑल्सो कि देयर आर कॉन्स्ट्रेंट्स एंड जो कि लिमिट करता है कि चॉइस सच एज एक्जिस्टेंस ऑफ, अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है तो आपको यार कहीं ना कहीं मतलब वो अपॉर्चुनिटी मतलब थोड़ी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपकी कुछ ना कुछ चॉइसेस में लिमिटेशन आ ही जाएगा। अगर वो आपको बेस्ट चाहिए तो वो बेस्ट क्या पता वो ऑलरेडी उसके लिए रिजर्व हो, राइट। तो वो चीज़ है, दीज कॉन्स्ट्रेनिंग फोर्सेज विल बी प्रोड्यूसिंग एन इम्पैक्ट दैट विल वेरी इन नेचर, डिग्री, मैग्नीट्यूड एंड इम्पोर्टेंस। ये जो है ना ये जो फोर्सेस जो है ना वो आपके ना विल बी प्रोड्यूसिंग एन इम्पैक्ट, हाँ, जिससे पता क्या होगा, जो कि वेरी करेगा नेचर में, डिग्री में, मैग्नीट्यूड में एंड इंपॉर्टेंस में। सम ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी मैनेज टू एन एक्सटेंट, या बहुत से फैक्टर्स में भी मैनेज हो जाए, बट हाउ एवर देयर विल बी अ सेवरल अदर्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि यार जो मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैनेजर सारी कंट्रोल कर पाता तो फिर तो हमारा कोई रिस्क एंड थ्रेट कुछ होता ही नहीं ना, थ्रेट तो खैर अपना होता, बट कोई ऐसा कोई रिस्क वगैरह नहीं होता ना, फिर तो कहाँ, मतलब सारी के सारे बिजनेसेस ही टॉप पे होते हैं ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, इसके बारे में हमने बता रखा है। तो रिस्क क्या होता है, प्लीज़ टर्न द पेज, यहाँ पर हम 2.6 पे आ चुके हैं। फिर रिस्क में क्या है कि इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जब कर रहे हो ना तो फिर प्रिंसिपल जो है मेंटेनिंग बैलेंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउएवर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंटरमिंगलिंग ऑफ वेरिएबल्स इन द एनवायरनमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, और इंटरमिंगलिंग ऑफ वेरिएबल्स मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स में जो डिफरेंसेस वगैरह जो होते हैं वो रिड्यूस कर देता है स्ट्रेटेजिक बैलेंसेस। मतलब वो जो हम बैलेंस हम चाहते थे स्ट्रेटेजिकली वो नहीं हो पाता, राइट। competitive markets, liberalization, globalization, booms, recessions, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स, ये सारे के सारे यार इसको ना एक बार प्लीज़ हाईलाइट कर लो। मतलब ना क्या पता है, मतलब ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ये कि इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, ये सब जो फैक्टर्स जो बताए हैं ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा पोज करते हैं रिस्क, मतलब रिस्क तो करते ही हैं बहुत ज़्यादा पोज, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इम्बैलेंसेस और रिस्क एंड असेसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट जो होता है ना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, वो क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई करो कि आप पोटेंशियल इम्बैलेंसेस और रिस्क, कि आप आइडेंटिफाई करो पोटेंशियल इम्बैलेंसेस और रिस्क के बारे में, और उसका असेस करो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिस्क दैट रिक्वायर कंसिडरेशन इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर पता है क्या है कि यहाँ पर टाइम का दे रखा है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो रिस्क दे रखे हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल और शॉर्ट टर्म दे रखा है। सपोज एक्सटर्नल आपका रिस्क है और टाइम क्या है, शॉर्ट टर्म है, तब क्या होगा, एरर इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट कॉज स्ट्रेटेजिक फेलियर, ठीक है। सो जस्ट रीड इट वंस, आई विल बी जस्ट टेलिंग यू, वेट अ मिनट। सो आई होप पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। सो इसमें क्या था कि ना जैसे ना अब यहाँ पर यार एक्सटर्नल के बारे में बता रखा है और शॉर्ट टर्म के बारे में बता रखा है। तो इसमें मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि हम लोग ना शॉर्ट टर्म में मतलब एक्सटर्नल जो रिस्क है वो एकदम से हम ना उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं
हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो दिख रहा है अभी, क्या पता वो वैसा ना हो, वो कुछ और हो, उसका रिस्क कुछ और हो सकता है ना वो। तो हम वो एनवायरनमेंट को इतना अच्छे से हम लोग वो स्टडी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कभी कभार हम स्ट्रेटेजी जो बना लेते हैं वो फेल हो जाती है। तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया कि अगर आप क्लासीफाई करोगे तो उसको एक्सटर्नल रिस्क है, वो इंटरनल रिस्क तो नहीं है, हमारी वजह से तो नहीं हुआ, बट एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में जो हुआ उसकी वजह से हुआ। और शॉर्ट टर्म में क्या हुआ कि हमने इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पाया। ठीक है, अब सेकेंडली अब इसमें क्या हो रहा है ना कि आप स्ट्रेटेजिक रिस्क जब एक्सटर्नली बात कर रहे हो, ठीक है, बट अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हो। एक्सटर्नल तो है ही वो, बट अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना कि चेंज हो गया इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से अब जो ऑब्सलीज जो मतलब अपना स्ट्रेटेजी पुरानी हो गई, अब वो वर्क नहीं कर पाएगी इतने अच्छे से जितना उसे करना चाहिए था। ठीक है, तो एक्सटर्नल में लॉन्ग टर्म में ये वाली चीज़ हो जाती है। अब इंटरनल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट टर्म, इंटरनल के शॉर्ट टर्म में ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज़ अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेटेजिक डिमांड्स। ठीक है, तो हाँ मतलब अभी कुछ और डिमांड है, इमीडिएटली कुछ और डिमांड है, बट हमारी जो जो इंटरनल जो मतलब लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो कोप अप नहीं कर पा रहे, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो गया। एंड मतलब ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क हो गई। समझ में आया आपको? हाँ, ओके ओके ओके। यार गाइस, हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक्सटर्नल इंटरनल टाइम है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं शायद हो गई थी। तो मतलब इसमें क्या है कि एक्सटर्नल और फिर शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पर ऐसा करना है। ठीक है, एरर्स इन इंटरप्रिटेटिंग, हाँ ठीक है। फिर अब इंटरनल में क्या है कि इनकन्सिस्टेंसीज विद द स्ट्रेटेजी आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द इंटरनल कैपेसिटी एंड प्रेफरेंसेस। तो अब क्या है ना कि अब इंटरनल है, मैं अभी इंटरनल में देखती हूँ, उसके बाद हम टाइम का देख रहे हैं, तो क्या है कि इसमें इनकन्सिस्टेंसी हो रही है हमारे, कि हमने बनाया तो था एक कि हमने ऐसे स्ट्रेटजी, हम लोग ऐसे काम करने वाले हैं, बट हमारे अंदर के खुद के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे, उनकी कैपेबिलिटीज़ उतनी है नहीं कि वो मीट कर पाए। तो वो लॉन्ग टर्म में जाकर हुआ ना, मतलब हमने अभी शॉर्ट टर्म में तो बना लिया, शॉर्ट टर्म में तो चलो चल रहा है, बट आगे जाके वो लोग ही बदल गए, वो कुछ और चेंज हो गया, तो वो है ना, वो एक तरह से हमारे लिए रिस्क हो जाता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क है ये हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। तो उसके बाद क्या लिखा है, एक्सटर्नल रिस्क इज ऑन अकाउंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड द फोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। इंटरनल रिस्क अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ फोर्सेज दैट आर आइदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑन रूटीन बेसिस। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ऐसा करिएगा प्लीज़ आप लोग, इसके बारे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेटेजी एनालिसिस। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग इसको देखो, मैं देखती हूँ फिर। हाँ, तो एक बार आप लोग इसको एक बार तुम देखो कि है क्या ये वाला। ठीक है, जस्ट स्टडी, जस्ट रीड द डायग्राम जब तक इवन आई एम रीडिंग इट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब आप लोगों ने इसमें आई थिंक देख लिया होगा, तो आई विल जस्ट से वन थिंग कि आप लोग हाईलाइट कर लो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, ये सब चीज़ें आप थोड़ा हाईलाइट कर लो। तो अब ना हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग स्ट्रेटेजी का जो एनालिसिस है वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी का एनालिसिस, ओके ठीक है। अब मतलब हम लोग को देखना होगा कि हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बट उसको एनालाइज करना होगा हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके एक्सटर्नल एनालिसिस भी होगी, इंटरनल एनालिसिस भी होगी। एक्सटर्नल में हम क्या देखते हैं, ओके हमारे कस्टमर एनालिसिस, सबसे पहले आता है कस्टमर एनालिसिस। तो उसमें क्या देखते हैं कि अच्छा ये कौन सा सेगमेंट है, ये क्या मतलब इसको फ़र्क पड़ता है क्या, कि अगर मैं मतलब कि मेरे लाइक इसको जो है सारे के सारे जो सेलर्स हैं उनको ज़्यादा उसको मतलब ब्रांड ओरिएंटेड ये कि बस मेरे को इसी ब्रांड का चाहिए, या उसको कुछ चलेगा, कुछ भी चलेगा, तो मेरे को देखना पड़ेगा मैं किस इंडस्ट्री में हूँ। लाइक मैं देखती हूँ कि हाँ यार इसी कस्टमर जो है ना, ये इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ये ऐसा नहीं है कि टी ही पिएगा, कॉफ़ी टी की वही वाली ब्रांड पीना है उसको, ऐसा नहीं है। हाँ चलो ठीक है, टी में कोई भी चलेगा, बट आपको देखना इसकी मोटिवेशन क्या है, मतलब इस कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लगती है। लाइक अगर फ़ोन में देखो तो कस्टमर्स को हमको अच्छे से क्रैक हो चुका है कि उनको कैमरा चाहिए अच्छा, है ना। तो हर जो भी फ़ोन होता है आजकल जो भी आ रहा है, तो वो कैमरा पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी मोटिवेशन पता चल गई है कि कस्टमर की उनको कैमरा अच्छा चाहिए, राइट। और अनमेट नीड्स, और ऐसी उनकी नीड्स जो कि अभी तक फुलफिल ही नहीं हुई है, उनको चाहिए कि लाइक किसी जो अनएक्सप्लॉइटेड जो एरिया है मार्केट का, जहाँ पर अभी तक वहाँ पर किसी ने लाइक बिजनेस किया नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा नीड है, तो आपको वहाँ पर भी एक एनालिसिस करके वहाँ तो जाना ही चाहिए फिर, राइट। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का क्या है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप, उनका क्या ग्रुप है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस, साइज, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री बैरियर। अब आपको मार्केट को भी यार बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को एनालाइज नहीं करोगे तो फिर आप चाहे कस्टमर को कर लो, उसको कर लो, आप
रहना तो मार्केट में ही है ना, तो मार्केट की आपको साइज़ देखना पड़ेगा कि यार कैसा मार्केट इंक्रीज़ हो रहा है, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसके एंट्री बैरियर्स हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मतलब बदल गई, और अगर गवर्नमेंट का कुछ नई पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट ऐसा कुछ चेंज होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैटर करेगा, राइट। सो वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एक्सटर्नल एनालिसिस में। अब इंटरनल एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, एक तो परफॉर्मेंस एनालिसिस देखो कि आपकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, कितना सेल्स हो रहा है, क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, क्या अपने में हमको देखना है कि क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। प्रोडक्ट क्वालिटी देखनी चाहिए, रिलेटिव कॉस्ट देखनी चाहिए, न्यू प्रोडक्ट हमको देखना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज देखने चाहिए, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस का क्या है, पास्ट एंड करंट स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। तो अब क्या होगा ना, अब ये तो यार हमने स्वॉट एनालिसिस में बचपन से ही पढ़ा, मतलब 11-12 में ही पढ़ा था, राइट। तो एक्सटर्नल से क्या होगा, हमको अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेगा, हमको अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क पता चलता है, और उससे हमको वो पता चलता है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, फ्रेंड्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के बारे में हमको एक्सटर्नल के एनालिसिस से पता चलता है। और इंटरनल से क्या पता चलता है कि हमारा क्या स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे में ये तो स्ट्रेंथ है ही यार, ये ना मेरे को सबसे ज़्यादा इसको यूनिक बनाता है इन सब सारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप ना इसमें स्ट्रेटजी को आइडेंटिफिकेशन और उसका सिलेक्शन करते हो। तब क्या होता है, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या स्ट्रेटजी के ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि ओके मेरे को ना यार ये वाला मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, तुमको थोड़ा सा ना ऑल्टरनेटिव भी सोचना चाहिए कि ओके तो क्या मैं कुछ और करके भी अपना अच्छा कर सकता हूँ क्या, या कर सकती हूँ क्या, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है, ठीक है। सिलेक्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, फिर रिव्यू करो, ठीक है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, और उसके बाद देखो कि हाँ चलो मैंने अब देख लिया कि सही है, मेरा ऑल्टरनेटिव मतलब इतना सूट नहीं कर रहा जितना मेरे को ये वाली स्ट्रेटजी सूट कर रही है। फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा, उसके बाद मैंने इसको रिव्यू करा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो हम लोग, आप प्लीज़ ये नीचे वाला जिसका पैराग्राफ है वो पढ़ लेना, आई थिंक उसमें भी यही सब कुछ लिखा होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ठीक है। या सो लग रहा है क्या बोरिंग चैप्टर? नहीं है ना, कहाँ है बोरिंग, कहाँ यार, हम लोगों ने कितने मतलब मज़े से पढ़ लिया। इसमें डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी से हमने स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शन से पढ़ा, हमने समझा कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती क्या है, हम क्यों मतलब उसकी क्या अप्रोचेज होती हैं, वो अट्रैक्ट कस्टमर वगैरह, हम लोग ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में हमने वो लैंडस्केप के बारे में पढ़ा। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे हम थिंकिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी जो प्रोसेस जो होते हैं उसको हम लैंडस्केप मतलब करते हैं। कॉम्पिटिटिव वे में जब हम थिंक करते हैं ना कि हाँ चलो ये मेरा मार्केट है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं यार कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में मैंने पढ़ा। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मतलब कि जो मैं स्ट्रेटेजी लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, तो उस चीज़ में उसका मतलब क्या चीज़ें मेरे को इफेक्ट करने वाली हैं, क्या मेरे को इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट करेगी, क्या मेरे को कॉम्पिटिटर्स कैसे करेंगे, मेरी खुद की क्या कैपेबिलिटीज़ एंड वीकनेसेस हैं, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। सो जस्ट डोंट फील कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, राइट। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके बाद देखो, अभी पढ़ने में क्या होगा, जस्ट आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, एक बार बस मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद रीड कर लेना। मैं भी खुद एक बार रीड करूँगी, जिससे क्या होगा, जब हम कुछ नहीं बोलते हैं ना तब हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो हम वो सब भी करने वाले हैं। अगर आपको नोट कर रहे हो तो आई होप कर ही रहे होगे। अब मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एक बार आप खुद पढ़िए, जब तक मैं भी एक बार देखती हूँ, है ना। आप लोग को पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन जो है उनके इनको एनालाइज करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं कि उनके क्या मतलब मूव्स हैं, उनको क्या हर चीज़ है, मतलब कैसे इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं जिनसे मेरे को डील करना है, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट। ओके, सो इसमें फर्स्ट टाइम में क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जो इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो होता है वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है कि आप यूज़ करो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, कि आप मतलब किसी कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को उसको यूज़ करो जिससे आपको पता है क्या मतलब पता चले, एक तरह से आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए
आपके दिमाग में क्लियरली होना चाहिए ना कि यार कैसी लाइक इंडस्ट्री है, कैसे उसकी ट्रेड्स हैं, कैसे इसकी इस राइवलरी का मतलब कैसे जो उसकी राइवल कंपनीज जो हैं उनकी कैसे वो स्ट्रेटजीज़ हैं, राइट। यू मे फील दैट मतलब इसमें यार आईसीआई में है ऐसा कि वो एक ही बात को बहुत बहुत बार बोलते हैं, ठीक है। आई नो इवन मेरे को भी लगता है यार क्या इतना ज़्यादा, बट इट्स ओके यार। हम अभी ना हम लोग को देखो कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इतना ज़्यादा मैटर जब तुम पढ़ लोगे ना, जब एग्जाम में आएगा तुम कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे इतने इतने सारे मैटर में, मतलब तुम काफ़ी लिख सकते हो फिर, है ना। सो डोंट वरी, जस्ट डोंट क्विट बिकॉज कि हाँ यार बहुत ज़्यादा मैटर है, बहुत ज़्यादा एक ही बात बोल रहे हैं, इट्स ओके बोलेंगे। पहली रीडिंग है मेरी भी और आपकी भी, तो हमें लग रहा है थोड़ा अजीब सा, बट दूसरी रीडिंग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा अच्छा यार इसमें ये था, इसमें वो था, इसमें ये था, तो वो हो जाएगा, ठीक है। जस्ट डोंट वरी नाउ। सो कि ड्राइवर हाँ, तो आपको हमको पता चलता है कि यार क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि मतलब इंडस्ट्री को चेंज करते हैं, क्या मार्केट पोजीशंस हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं राइवल कंपनीज़ की, और कॉम्पिटिटिव सक्सेस और प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। हमको ना ये मतलब एक तरह से ये जो आपका इंडस्ट्री और ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है ना, एक आपको एक तरह से एक वे ऑफ थिंकिंग देता है, लाइक ऐसे स्ट्रेटेजिकली आपको थिंकिंग देता है जिससे आपको ना इंडस्ट्री के पूरा ओवरऑल सिचुएशन और उसकी ड्राइंग कंक्लूजन्स की क्या मतलब कैसा है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो फिर ये चीज़ है जैसे ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, सो वेयर आई वॉज आई, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जो है ना एक ऐसी थिंकिंग के बारे में करना पड़ेगा जिससे आपको इंडस्ट्री का ओवरऑल सिचुएशन पता चल सके और उससे आप कंक्लूड कर पाओ कि कैसी इंडस्ट्री मतलब एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए है या नहीं। लाइक हर इंडस्ट्री यार मेरे लिए मतलब अट्रैक्टिव नहीं हो सकती है, मतलब मेरी अप्रोच कुछ और हो सकती है, दैट इज़ वेरी रिलेटिव कि क्या मतलब क्या चीज़ किसी चीज़ के लिए मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अप्रोच है हमको कि क्या हाँ हमको ये फैक्टर्स चाहिए तो वो होने चाहिए। बट एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यार इंडस्ट्री में ये नहीं होगा कि आपके ना 5-6 आपने क्राइटेरिया कर लिया कि अगर ये हैं तो मतलब इंडस्ट्री मतलब सही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंडस्ट्री अलग अलग है, मतलब हर इंडस्ट्री के अपने ही अलग जो है रिस्क हैं, अपनी अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको वो सब चीज़ें थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें यार जब आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन फंड्स है या नहीं, ठीक है। वेदर इन एनालिसिस entitles examining business in the context of a wider environment, ठीक है। वाइडर इन्वायरमेंट के बारे में हमको पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है हम उसको कंपेयर कर पाते हैं। फिर इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एम्स एट डेवलपिंग इंसाइट इन सेवरल इशूज़। यार ये ना मतलब इससे आपको इंसाइट मिल जाती है बहुत सारे इशूज़ के लिए जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, ओके। सो analyzing these issues build understanding of a firm surrounding environment and collectively form the basis for matching its strategy to changing industry conditions and competitive realities. The issues are discussed below. अब हम जो issues जो हैं वो discuss below मतलब हम लोग पढ़ने वाले नीचे। I hope मतलब ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हो। देखो यार मतलब क्रक्स तो बस यही है ना कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये ओके। सो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग मेथड्स में हम लोग ये कर रहे थे। इसके अंदर पहला जो टॉपिक जो आया था जो कि इसका वो है इश्यूज़ जो है। तो फर्स्ट इशू क्या है आपका, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री। अब डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर क्या होता है यार इंडस्ट्री में ना, इंडस्ट्री क्या होता है एक ना फर्म, बहुत सारे कलेक्टिव, बहुत सारी एक जैसी फर्म्स जो कि कम्पीट करती हैं मार्केट में, ठीक है। यहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट। हाँ, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स हुज प्रोडक्ट हैव सिमिलर है सेम एंड सिमिलर एट्रीब्यूट्स सच दैट दे कम्पीट फॉर द सेम बायर। मतलब वो एक ही बायर के लिए कम्पीट करते हैं, उस चीज़ को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। लाइक दे आर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री। तो इसमें क्या है कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसके सब कस्टमर एक जैसे हैं, वो कम्पीट करेंगे एक दूसरे के लिए कि मतलब जिससे उनके कस्टमर सबसे ज़्यादा उनके पास आ सकें, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हम लोग एवेलुएट करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ पीपल यू हैव टू डील विथ, है ना। तुमको पता होना चाहिए कि आप किस लोगों से डील करोगे एंड बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स द इंडस्ट्री यूनिक, ठीक है। और तुमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या इंडस्ट्री को यूनिक बनाती है कोई चीज़, और यार उसी यूनिक चीज़ में अगर तुम जो है अपना लाइक अच्छे से उस चीज़ में तुमने अपने होल्ड पा ली तभी तुम गेन कर पाओगे इसमें एडवांटेज। हर इंडस्ट्री का यार कुछ ना कुछ तो चीज़ होती है कि ये है, सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसमें मतलब क्या यूनिकनेस है, क्या मतलब कैसे उसके कस्टमर्स आने वाले हैं, और अगर तुमने उसको अच्छे से क्रैक कर लिया फिर तो कोई कस्टमर तुम्हारे हाथ से नहीं जाने वाला, राइट।
तो ये मतलब प्लेसेस के बारे में भी होता है कि अगर डायमंड मार्केट है तो आपका सूरत में है, आईटी है तो बेंगलोर और हैदराबाद में ऐसे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जस्ट रीड ये सारे के सारे इसके जो फैक्टर्स हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब इतना तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन। नेचर और स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन जो है, इसमें हम लोग पोर्टल्स के 5 फोर्सेस मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो आई थिंक हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कहीं कर रखा होगा, तो मैं आपको चलो बता देती हूँ। आई थिंक हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगी अच्छे से, ठीक है। फिर ट्रिगर्स फॉर चेंज। अब ना आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैनेजर्स को ये नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में ना क्या ड्राइविंग फोर्सेस हैं और क्या कौन से एलिमेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि उस मतलब ड्राइविंग फोर्स को वो करते हैं, ठीक है, मतलब वो चला रहे हैं। लाइक सपोज अगर आप फैशन वर्ल्ड में देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि यार किस चीज़ की वजह से इतना ज़्यादा फैशन चेंज हो रहा है, और आपको ये भी देखना होगा क्या आप उस पोजीशन पे हो या आप बढ़ना चाहते हो इस पोजीशन में कि आप मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करो। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए आपको ये जो ट्रिगर्स पर चेंज जो है इनको अच्छे से इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंडस्ट्री और उसके कॉम्पिटिटिव एंड जो कॉम्पिटिटर्स जो है उनको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यस, फिर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट कंपनीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग मतलब कि आपको देखना पड़ेगा सपोज मेरे 5 कंपनीज हैं, वो मेरे राइवल फर्म्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, 5 जो बहुत वीक हैं, तो मैं कहाँ पर मतलब स्टैंड करती हूँ, मैं मतलब कहाँ पर कहाँ पर मैं जो है मतलब किस कौन मेरे ज़्यादा डायरेक्ट मतलब वो है कॉम्पिटिटर्स, मेरे को कैसे उनको डील करना है, वो सब चीज़ें आप कैसे करोगे जब आप इंडस्ट्री को और उसके कॉम्पिटिटर्स को आप अच्छे से एनालाइज करोगे, ठीक है। उनके लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव्स को आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि मतलब ऐसा होगा ना यार कि मतलब हमको जो है एंटिसिपेट करना पड़ेंगे उनके मूव्स को, अगर हमको उनसे आगे रहना है, अगर हमको फर्स्ट मूवर बनना है, या हमको पहला हमको ना देखना है कि हम बस पीछे ना रह जाएं और वो लोग इतना आगे ना पहुंच जाए, तो उसके लिए हमको उनके ऊपर प्रॉपर ट्रैक रखना पड़ेगा, हमको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि अच्छा मतलब ये इनकी एनालिसिस है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस से देख लो। कुछ लोग स्पाइंग कराते हैं, वो ऐसे तो इलीगल है बट फिर भी आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ें आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा, और उस एंटिसिपेशन से क्या होगा, आप कोप अप कर पाओगे, इतना पीछे नहीं रह जाओगे आप उनसे, ठीक है। तो वो चीज़ है की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको कंपटीशन में सक्सेस लेके आएंगी, तो उसके लिए आपको ना कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने पड़ेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन से पूछने पड़ेंगे, ठीक है। लुक, मैं मतलब अभी थोड़ा अपने नोट से पढ़ रही हूँ, बट ये सभी सेम चीज़ें ही हैं जो मतलब इधर हैं बुक में, ठीक है। तो मतलब मैं ना आपको एक ना ऐसा मैं चाहती हूँ कि आपको एक इंसाइट दे दूँ मैं, जिससे ना मतलब आप जब पढ़ो तो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा ना लगे कि क्या बोरिंग सा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वाली नहीं होनी चाहिए फीलिंग। मैं आपको ये समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ोगे उसे रीड करोगे तो करना ही पड़ेगा, और रीड करने में थोड़ी तो मतलब लगेगा कि इतना ज़्यादा मैटर है, बट नहीं, हमको करना है ना, मैं भी कर रही हूँ और आप लोग को भी करना है, मैं तो फिर से भी करूँगी एक बार और आप लोग को भी आई होप फिर से आप अच्छे से करो एक बार, ठीक है। On what basis do customers choose between the competing brands of competing brands of seller, ठीक है। एक सेकेंड हाँ यार, वही सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पहले बताए थे ना कि जो कुछ इंडस्ट्री में जो कस्टमर्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कुछ इंडस्ट्री में स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कस्टमर कैसे हैं, कैसे वो कॉम्पिटिटर्स आपको और कॉम्पिटिटर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सब चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और फिर प्रॉस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। आई डोंट वांट, हम लोग को ना ये भी नहीं है कि ऐसा हम लोग ऐसी मार्केट में जाना चाहते हैं कि जहाँ पर जो है मतलब ऑलरेडी इतना इतना ज़्यादा सप्लाई है, और वहाँ पर हर 100 रुपये के लिए 5 रुपये मतलब ऐसे इतने रुपये के लिए भी इतना ज़्यादा हमको ना कंपटीशन करना पड़ेगा। हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे जो हम अगर सपोज न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जो पहले से हैं वो तो नहीं पता, बट हम लोग नए लोग तो नहीं जाएंगे ना वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ेंगी, हम लोग को उनके प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस देखनी पड़ेगी। हम लोग को ऐसा नहीं है कि लिकर में अगर हम जाते हैं और लिकर सपोज किसी स्टेट में वहाँ बैन हो गई है और आपको लगता है कि उस स्टेट मतलब एक सपोज वहाँ गुजरात में हो चुकी है, एंड अगर हमको लगता है कि यार इस स्टेट में भी हो सकती है, तो मैं ऐसा बिजनेस थोड़ा करूँगी कि जिसमें वो भी बैन हो जाए, राइट। तो अट्रैक्टिवनेस मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि किसी के लिए कुछ और हो सकती है अट्रैक्टिवनेस उनके लिए, और किसी के लिए कुछ और हो सकती है, तो दैट इज़ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, ओके। सो दिस इज़ गुड। नाउ जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर। सो गाइस,
सो हम लोग, आई होप कि कोई बोरिंग ना हो रहा हो लेक्चर। प्लीज़ हमको अच्छे से पढ़ना है, राइट? वी नीड टू क्लियर दिस एग्जाम। सो जस्ट ड्रिंक वाटर यू ऑल्सो। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग कोर कॉम्पिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंस वो चीज़ होती है जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है और हमारे पास एक एडिशनल हमारी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से हम स्टैंड आउट करते हैं अपने लाइक कॉम्पिटिशन में, एंड जिसकी वजह से हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है? कुछ ऐसा जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स में नहीं है, और वो हमारी मतलब एक ना हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे लिए क्रिएट करता है, ठीक है? और वो बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास एक वो चीज़ है वो कोई और भी कॉपी कर लेगा, तब तो कोई कोर कॉम्पिटेंस नहीं हुई ना। तो वो मेरी इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ और बैकबोन क्या है वो चीज़ है होती है ऑल टुगेदर। सपोज किसी लोगों के ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी लोग के थ्योरी होते हैं, बट इसमें एक और बात चीज़ हमको देखनी चाहिए कि कोर कॉम्पिटेंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तब ये नहीं कि आपका अकाउंट्स में ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका अकाउंट्स लाइक प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग हो गया, वो मतलब नहीं हुआ। आप अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो तो दैट मीन्स आपका सही में कैलकुलेटिव जो चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर थ्योरी में तो सेम ऐसा वहाँ पर भी मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग आगे वो एक्सप्लेन करेंगे कि जो जगह अगर आप कोई क्राइटेरिया देख रहे हो क्या उसकी स्ट्रॉन्गनेस में, तो उसको ऑल टुगेदर देखो, उसका एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, वो ऑल टुगेदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके। फिर जो मेजर जो कोर कॉम्पिटेंस ही जो होती है ना वो आइडेंटिफाइड होती है 3 एरियाज में। पहला कंपटीशन डिफरेंशिएशन, सेकंड कस्टमर वैल्यू, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ओन अदर मार्केट्स, ठीक है? एक सेकेंड हाँ, ठीक है। तो ये जो है ना आपका 3 की मतलब कंपटीशन डिफरेंशिएशन, एक तो हमारा डिफरेंशिएटेड मतलब चीज़ होगी। हम लोग ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कॉपी कर रहा है और सबके पास सेम चीज़ है, तभी हमारे पास कोर कॉम्पिटेंस है। कस्टमर की सही में वो वैल्यू करता है उस चीज़ के लिए, तभी वो पैसे देने के लिए रेडी है। और मतलब एप्लीकेशन ऑफ अदर एरियाज़ में मतलब क्या है कि कॉम्पिटेंसी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग अपनी अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारे पास कॉम्पिटेंसी तो है बट उसको हम अच्छे प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। आप लोग प्लीज़ एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको कोई और एग्जांपल्स होते हैं वो भी बता देती हूँ। तो ड्यू टू कॉम्पिटेंसी वी कैन स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिशन एंड ड्यू टू कोर, अच्छा ओके। जस्ट आई वांट टू टेल यू अ डिफरेंस। देखो कॉम्पिटेंसी और कोर कॉम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। देखो कॉम्पिटेंसी में क्या होता है ना, ड्यू टू कॉम्पिटेंसी वी कैन स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन। हम लोग कॉम्पिटिशन के अंदर अगर मतलब है तब वो कॉम्पिटेंसी की वजह से, अगर हमें कुछ है काबिलियत तभी है। बट अगर कोर कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो हम कॉम्पिटिशन थोड़ा आगे हैं, ठीक है? हमारे पास कुछ ज़्यादा है। तो अगर एप्पल में देखो तो एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा है, तो एक उनकी कोर कॉम्पिटेंसी हो चुकी है वाली उस चीज़ में, ठीक है? तो अब इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ कुछ। ऐसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स की सबसे ज़्यादा फास्ट सर्विसेज है। सेकंड जो है आपका डेल है, उसकी गुड क्वालिटी और चीप कॉस्ट पे है। वही इसमें एप्पल का iOS और सिक्योरिटी है। वॉलमार्ट की कॉस्ट सबसे कम है। वॉलमार्ट की कॉस्ट सबसे कम क्यों है? क्योंकि वो भाई अलग ही इतना बड़ा ज़्यादा ही है, एंड वो सबका सारी सेलर से सारा सामान ले लेता है क्योंकि बल्क में, उसके बाद सबसे मतलब सस्ते में बेच पाएगा, उससे सस्ता कोई नहीं बेच सकता मेरे हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर वही उन लोगों ने आई थिंक उन्होंने वो बता रखे होंगे एग्जाम्पल्स वगैरह। और फिर यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू JK प्रहलाद एंड गैरी का हेमिल, मेजर कोर कॉम्पिटेंसी आर आइडेंटिफाइड इन 3, ठीक है? यही मैंने आपको अभी बताया था, जो पीछे बताया था ना वो ये CK प्रहलाद वाला ही था, ठीक है? और हाँ प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया, डोंट वरी, ठीक है? हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, अभी एक क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे आप बिल्ड करें कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है? तो दे आर 2 टूल्स दैट help the firm to identify and build its core competency. तो 4 specific criteria है। just a second, hey guys sorry मुझे जाना पड़ा था अभी, बट हाँ हम लोग कहाँ पर है कि हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है? तो अब यहाँ पर देयर आर 2 tools that can help the firm to identify and build its core competencies, ठीक है? तो यार इसमें ना मतलब आई थिंक हाँ वो है ना, इसमें सही बात है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कैपेबिलिटीज़ दैट आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल आर कोर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है? या तो आप ऐसा कर लो कि मतलब कैपेबिलिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड,
कैपेबिलिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, रेयर है, कॉस्टली हैं, जिससे इतना इमिटेट नहीं हो सकता वो। आप ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करो अपने में, ठीक है, लाइक अपनी फॉर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, तभी वो कोर कॉम्पिटेंसीज होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई कॉस्टली भी नहीं है, रेयर भी नहीं है, तो फिर कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या हुआ, राइट। तो पहला क्या कि वैल्यूएबल्स होने चाहिए, सेकंड रेयर होना चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया वाली बात। इसके बाद जैसे रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर क्या है, कैपिटल की टेक्नोलॉजी। कॉस्टली टू इमिटेट क्या है, बुर्ज खलीफा, ठीक है, मतलब वो आई थिंक 9,000 करोड़ का है, तो हाँ, तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इतनी जल्दी वो फिर से नहीं बन सकता ना। और वैल्यूएबल जो है, लाइक कुछ चीज़ें जो होती हैं ना कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, तो वो फिर मतलब नहीं कर सकते। एक मिनट, वैल्यूएबल दैट अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़, और ठीक है, दे क्रिएटेड वैल्यू फॉर कस्टमर्स। वैल्यू हम लोग ना कस्टमर के लिए वो ऐसे वैल्यू एडिशन कर लेता है कि अब वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। फिर अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते यार उसको, कि मतलब अगर ऐसे हम बात करें, लाइक नॉट अ वैसा, इतना अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, बट अमिताभ बच्चन है, ठीक है, तो उन जैसा अब तो बॉलीवुड में वैसा तो कोई हो नहीं सकता, राइट, तो उनका जैसे सब्स्टिट्यूट नहीं मिल सकता, राइट, तो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कैपेबिलिटीज़ दैट डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस आर कॉल्ड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटीज़, ठीक है, ओके, तो आपने बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद फिर क्या है कि वैल्यू चेन एनालिसिस। तो अब ना आपको अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है कि वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है कि बिजनेस जो है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों मतलब फैक्टर्स को जब कंबाइन करते हैं तब चलता है। और वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक मिनट बताती हूँ आपको इसका। तो मेरे डिपार्टमेंट में जैसे कर रहा हूँ एज अ ग्रुप टू इंश्योर दैट सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं एंड सब मुझे, हाँ, मैं अपने डिपार्टमेंट का जो है ना, मतलब उनके रिसोर्सेज वगैरह, उनको ग्रुप को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ, एक मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप फुल्ली यूटिलाइज जब करते हो, और आपके जो है मतलब आपके दोनों फैक्टर्स, जो आपके मतलब मैनेजमेंट है और आपका बाहर का फैक्टर्स जो है, वो दोनों। सो गाइस, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस जो होता है ना, वो आपकी एक स्ट्रेटजी होती है जो कि आप यूज़ करते हो, जिससे आप अपने अपने जो इंटरनल फर्म की जो एक्टिविटीज़ हो ना, उसको आप एनालाइज कर लेते हो, ठीक है। मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस की वजह से आप ना अपने इंटरनली जो डिपार्टमेंट्स वगैरह है उसमें आप देखते हो कि यार मेरा कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन सा मेरा डिपार्टमेंट जो है ना मेरा कोर कॉम्पिटेंसी में इंक्रीज मतलब बन सकता है ऐसा। लाइक मैं देखती हूँ कि मेरा जो है ना सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट मेरा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो मेरा अच्छे से उसके साथ कोप नहीं कर पा रहा है, तो मेरे को उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये चेन एनालिसिस जो होती है ना, वो इट्स टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग। यहाँ पर लाइक प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो चीज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी मतलब जो होता है वहाँ पर तो आपका ये वाली बात हो जाती है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हो जाती हैं वो आपकी हो जाती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई प्राइमरी सर्विसेज एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इनमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम लोग मतलब हमारा क्या ये सब कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं। तो अब हम लोग मतलब हमने जब अभी जितना भी चैप्टर में पढ़ा है उतने में हमने पढ़ा कि ओके हम लोग उससे बाहर के लोग के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अंदर के बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने अभी तक नहीं स्टडी किया था, बट अब हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। एंड हम ये निकालते हैं कि अच्छा जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं उन वो क्या कोप अप कर पा रही हैं अच्छे से, क्या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर मेरे को इंप्रूवमेंट चाहिए और कहाँ पर मैं कैसे उस चीज़ को अपना कोर कॉम्पिटेंसी में इंप्रूव मतलब कर सकता हूँ। ये हमारा एक तरह से कोर कॉम्पिटेंसी जो है ना, उसको एक तरह से उसको स्ट्रेंथ उसको मतलब इस तरह से बिल्ड करता है अच्छे से, ठीक है। तो और उसके जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो आती हैं, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में हो गया आपका HR हो गया, आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, फर्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सेकेंडरी आ जाती है, सपोर्टिव आ जाती हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सपोर्टिव और प्राइमरी को जब आप अच्छे से करते हो देखते हो तब वो होता है, ठीक है। तो डिटेल में आप लोग लाइक मैंने जो आपको बताया था इसके अंदर प्लीज़ एक बार आप रीड कर लीजिएगा, वरना इसका यही है मतलब इसका मतलब यही है ना। ठीक है।
सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ, नॉट वेरी बट हाँ मतलब कुछ तो मैंने आपको इनसाइट दे ही दिया होगा इसके बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है हमको। और आई विल टेल यू, वेट अ सेकेंड जस्ट। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आई थिंक आपको मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हम लोग क्यों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी करते हैं, तब हमने पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा बेस्टली यूज़ करते हो, ठीक है, तब वो बोलते हैं जो मतलब जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि मैंने आपको शायद इसमें गलती से बोल दिया था कि ये वैल्यू चेन जो एनालिसिस होता है उसमें भी रिसोर्सेज को बेस्टली, मतलब वो बॉयल डाउन करके तो बात सेम हो जाती है, बट वो है नहीं। आप उसकी डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिख सकते कि उसमें अपना लाइक अपने रिसोर्सेज का वो अलग है, मतलब उसमें अपने डिपार्टमेंट्स को आपको लाइक हाईलाइट करना है। यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में ऐसे ना ऑल टुगेदर बात नहीं करनी है, ठीक है। एंड इसलिए आई एम ट्राइंग माई, मतलब आई डोंट नो मैं इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ और नहीं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड जस्ट मतलब फॉरगिव अगर मैं कुछ गलती कर दी तो इसमें ऐसे बोलने में, तो प्लीज़ बी लीनियंट। एंड आई एम ट्राइंग माई हार्ड कि मैं अच्छे से आपको अच्छे से बताऊँ हर चीज़, है ना। आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में है क्या, ठीक है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, सही है। तो हाँ, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे अभी, हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ रहे थे, मतलब जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है। तो अब इसमें पता है क्या है कि इफ़ अ कंपनी स्ट्रेटजीज रिजल्ट इन सुपीरियर परफॉर्मेंस, ये आपकी बुक में लिखा हुआ होगा एक लाइन, प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर जब ना इसके ये वाई डू समथिंग समथिंग के बाद यहाँ पर ये लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ अ कंपनी स्ट्रेटजी रिजल्ट इन सुपीरियर परफॉर्मेंट इट इज़ सेट टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आपकी कंपनी जो है ना, आप ना उसकी स्ट्रेटजी उसने बनाई और उसकी स्ट्रेटजी से सही में वो सक्सेसफुल हुई वो स्ट्रेटजी और उसने सुपीरियर परफॉर्मेंस करा, तब उसे बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो यही मतलब ये मतलब इसको बता रहे हैं कि एक जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है वो आपको एक एज दे देती है अपने कंपटीशन से। ये एक यूनिक फीचर होता है जिसके एंड उसके प्रोडक्ट्स जो है मतलब जो परसीव करे जाते हैं हमारे टारगेट मार्केट एज सिग्निफिकेंट सुपीरियर टू कंपटीशन, मतलब उसके प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, वो सुपीरियर होती है कंपटीशन की, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। इसका बारे में आप इसके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ के बारे में आप पढ़िएगा। और इसमें यहाँ पर क्या बता रखा है, इसमें अभी वाला डायग्राम देखेंगे तो क्या है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कैपेबिलिटीज़ और रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में क्या लिख रखा है, टेंजिबल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंटेंजिबल, ह्यूमन स्किल्स, टेक्नोलॉजी और रेपुटेशन। तो ये सब चीज़ें रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, ये टेंजिबल हैं या इंटेंजिबल हैं, यही आपकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं, राइट। कि अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है तो वो ऑब्वियसली एक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया आपका। आपके अगर यू हैव गॉट द बेस्ट एसेट्स तो आपका अच्छा होगा, वो कैपेबिलिटी आपका इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा, ठीक है। अंदर का आप पढ़ लीजिएगा। आई हैव जस्ट गिवन यू द इनसाइट, सिंस आई थिंक बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए, सिंस ये भी बहुत ज़्यादा ही बचा है, बट वी विल डू इट, राइट। हाँ, तो द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स अपॉन द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यार इसकी 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट क्या है, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड देन फिर अप्रोप्रिएटेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब ऐसा ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर यार जब तक वो ड्यूरेबल होगा, ड्यूरेबल का मतलब क्या है ना कि ऐसा ना हो कि यार आज मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक चीज़ का है, वो एकदम से ही मतलब लाइक 2-3 महीने बाद ही वो किसी और ने ले लिया उसका वो चीज़। सपोज मैं आपको बताती हूँ, लाइक ना ये OnePlus है, ठीक है। OnePlus का स्पीड बहुत अच्छी है, उसकी फास्ट चार्जिंग, ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अब ये इसकी ड्यूरेबिलिटी है, बट अगर ये वाली इसकी टेक्नोलॉजी जो है पता चल गया किसी और फ़ोन को भी, उसने भी ऐसा कर लिया, तो हमारी तो एज खत्म हो जाएगी ना। फिर हमारा इट विल बी नो मोर आर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो वो ड्यूरेबिलिटी हो जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बना रही हूँ कोई ट्रांसफ़र ही हो जाए किसी और के पास, तो वो नहीं होना चाहिए। इमिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि कोई हमारी कोई कॉपी कर ले, है ना। और फिर अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि अगर आप देखो कि ऐसा ना हो कि मतलब एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, इसके बारे में पढ़ती हूँ मैं। अप्रोप्रिएटेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म्स ओनर्स टू अप्रोप्रिएट the returns of on its resource basis, even where resources and capabilities are capable of offering sustainable advantage, there is an issue as to who receives the return ऑन दीज रिसोर्सेज। मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एसी जो स्विट्जरलैंड में बेच रहे हो, हाँ आपका एसी बहुत अच्छा है, आपका मतलब बहुत बढ़िया एसी है, हर चीज़ में बहुत अच्छा ही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जहाँ नीड ही नहीं है वहाँ बेच रहे हो, राइट।
सो व्हाट इज, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, एक चीज़ हम लोग क्वेश्चन कैसे हैं मैं देखते हैं मेरे को। हाँ बी है ना ये। ठीक है, तो एक तो ये हम लोग के बारे में ये बताता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कि ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन में क्या होता है ना, वैल्यू क्रिएशन में मतलब कि एक ना कोई नॉर्मल चीज़ है, आप उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ कर लेते हो। सपोज एक आइसक्रीम है, नॉर्मल आइसक्रीम है, वो वेनिला आइसक्रीम है, बट अगर आप देखो कि उसके ऊपर ना लाइक आपने बहुत ज़्यादा एक डेकोरेशन कर दी है उसको, जो जैसे बास्किन रॉबिन्स ये सब जो होते हैं मतलब बहुत अच्छी सी क्वालिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऐसा इंक्रीज़ करके दिखाते हैं कि जिससे आपको लगे कि मतलब वाह, मतलब मेरे को लगे हाँ यार इसकी वैल्यू है, मतलब पैसे मैंने अगर दिए हैं तो मेरे को इन्जॉय, मतलब वो उसका जो है ना वो बेनिफिट भी मिल रहा है इतना। ठीक है, अगर सपोज आप थिएटर्स की बात करो तो थिएटर्स में क्या है कि एक तो सीट्स जो होती हैं प्रीमियम वाली नहीं होती, तो वहाँ पर अलग होती हैं, मतलब प्रीमियम वाली सीट्स जो होती हैं वहाँ के बैठने का जो काउच वगैरह होता है वो थोड़ा अलग बिल्ड होता है, जिससे आपको थोड़ी एक अच्छी फील आए। तो वो फील गुड वाली थिंग जो होती है ना वो वैल्यू क्रिएशन होती है एक तरह से। ठीक है, तो हाँ ये जो है ना, अब फिर इस वाले टॉपिक में आपका यही है, बस ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी एट द मोस्ट बेसिक लेवल। हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी बिकम्स डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। मतलब ना कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है ना वो लीड करता है सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अब इसमें बता रहे हैं जो, मतलब इसमें आपको लिखा ही होगा कहीं ना कहीं वाला, मतलब थोड़ा सा ही नीचे है मतलब, है ना, तो वहाँ पर लिखा होगा, उसमें क्या लिखा होगा कि हाउ कितना प्रॉफिटेबल है एक कंपनी के लिए, वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स में। फर्स्ट, वैल्यू कस्टमर place on the company's product. Second, the price that the customer charges for its product. Third, the cost of creating those product. ठीक है, तो वैल्यू कस्टमर मतलब कितना, लाइक ना मतलब ऐसा होता है ना कुछ कुछ चीज़ें यार थोड़ा सा ही हम ऐड कर रहे हैं बट हमको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है, तो वो हमारे ना 3 फैक्टर्स से मतलब डिटरमाइन होता है कि यार हमारी कितनी एक्चुअल में कॉस्ट थी उसकी, कितना मतलब प्राइस जो है कंपनी उसके लिए चार्ज कर रही है उस प्रोडक्ट के लिए, और कितना मतलब कस्टमर उसको देने के लिए रेडी है। तो ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट मतलब रहते हैं। ठीक है, अब आई होप ये सब क्लियर हो गया हो। देखिए ये चैप्टर जो है मतलब मेरे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट तो मतलब मेरे लिए ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल कि आई कैन रीड द होल वन बाय वन लाइन, मतलब मैं अपने, हम लोग को खुद भी पढ़ना पड़ेगा बट हम लोग अपने मन में पढ़ सकते हैं, इतना सब कुछ बोल के तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हो। बस मैं आपको पता है क्या मतलब एक इंसाइट ऐसा ना आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है। वैल्यू क्रिएशन जैसे आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में जाना चाहिए वैनिला वाला आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल कि हाँ ठीक है कि आप उसके ऊपर जो हम लोग को करते हैं, तो इससे क्या होगा ना आप उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए। फिर अगर आप 1-2 बार रीड करोगे इसको, एक बार आप रीड कर लो, ठीक है, जब जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो आप इसको रीड करो बस, ठीक है, इसको रीड करो, इसको अंडरलाइन करो। नॉट नेसेसरी आप नोट्स बनाओ, नोट्स में ये मत करना कि आप उसको छाप रहे हो, वो बेकार है, वो चीज़ बेकार है, वो उससे टाइम वेस्ट ही होता है। सिर्फ नोट्स मतलब कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो ये लिख लो बस, बट ये नहीं कि उसको कॉपी कर रहे हो, वो मत करना आप लोग, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग समझ रहे हैं इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, अब हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पोर्टफोलियो में क्या है ना कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है, पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है। सपोज एप्पल है, एप्पल का पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एप्पल का लाइक आईफोन आ जाता है, उसका आईपैड आ जाता है, मैकबुक आ जाती है, आईपैड आ जाता है उसका, है ना, उसके वो जो आईपॉड्स होते हैं वो हो जाते हैं, ये सब चीज़ें उसके मतलब पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, मतलब ये सब उसके प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। अब पतंजलि का देखो, पतंजलि में तो बहुत सारे ही रेंज हैं, या फिर HUL का देखो, मतलब इनका बहुत वाइड पोर्टफोलियो है, ठीक है। सो पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है। पोर्टफोलियो के एनालिसिस हम क्यों करते हैं, एनालिसिस हम इसलिए करते हैं जिससे हमको पता चले कि ओके हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है ये बेकार है, मार्केट में नहीं चल रहा, तो हम इसको इसके ऊपर जो हमने कॉस्ट लगाई है उससे कम करके हम दूसरे प्रोडक्ट में लगा दें, और वहाँ से जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है उस पर लगाएं, उससे रिटर्न ज़्यादा लें, राइट। इस पर हम पोर्टफोलियो को बस ये नहीं कि हम बस अपने लोग दिखाने के लिए हम लोग मतलब कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग को इसको एनालाइज भी डीपली करना पड़ता है कि अच्छा ओके सो ये प्रोडक्ट मतलब मार्केट में ऐसे HUL के तो बहुत ज़्यादा ही हैं, तो उसमें से कुछ कुछ सोप जो है उसके चलते ही नहीं है, तो अब मतलब वो क्या करेगा कि वहाँ पर उसकी एडवर्टीजमेंट कम करेगा, उसका वो कम करके वहाँ पर फिर दूसरे जो प्रोडक्ट है जो चल रहा है बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगाएगा वो, है ना, वहाँ पर क्यों ही लगाएगा। फिर ये सब चीज़ें हम लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस में करते हैं, ठीक है, ओके। So there are 3 important concepts, the knowledge of which is
prerequisite to understand different model of portfolio analysis. अब portfolio analysis के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. तो फिर सबसे पहले तो आता है SBU, that is Strategic Business Unit. SBU क्या होता है ना कि मतलब जैसा हो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब ऐसा, हाँ, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बहुत सारे डिफरेंट जैसे रिलायंस ले लो. रिलायंस मतलब पेट्रोलियम में भी है, क्लोथिंग में भी है, एंड मतलब जियो भी है उसका, हर चीज़ टेलीकम्युनिकेशन में भी है. तो मतलब इसमें हर चीज़ में डिफरेंट है. तो ये तो एक पॉसिबल नहीं है ना कि एक मैनेजर के लिए कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो. लाइक क्लोथिंग के लिए, फैशन में भी एक्सपर्ट हो वो, और जियो के नेटवर्क के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हो. तो उसके लिए दे नीड कि वो मतलब एक सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट टाइप की वो बनाएं, जिससे उसकी मतलब उसकी उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट अच्छे से कर पाएँ, वो कर पाएँ. तो वो एक SBU हो जाता है. तो क्या है, एनालाइजिंग पोर्टफोलियो में बिगिन विद आइडेंटिफाइंग की बिजनेसेस ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. तो जब तुम एनालाइज करते हो पोर्टफोलियो को, तो वो कब हो जाता है, जब पोर्टफोलियो को कर रहे हो तो उससे हमारा ना मतलब उसका जो ब्रॉड कैटेगरी में करोगे तो तुम SBU में इसको सबसे पहले कैटेगराइज करने वाले हो. तो SBU इज अ यूनिट ऑफ द कंपनी दैट हैज सेपरेट मिशन ऑब्जेक्टिव विच कैन बी प्लान्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्रॉम अदर कंपनीज. वो सब उनका डिफरेंट होता है, उनके कॉम्पिटिटर्स अलग है, उनके रिस्क अलग है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अलग है, सब चीज़ें अलग हैं उनकी. ठीक है. उसके बाद एन SBU हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आई थिंक जो मैंने बताया वही है. फिर एक्सपीरियंस कर्व. ओके, अब सेकंड पॉइंट जो हम लोग जो लाइक पोर्टफोलियो का हम करते हैं तो वो क्या चीज़ हो जाती है, एक्सपीरियंस कर्व हो जाती है. एक्सपीरियंस कर्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज फॉर अप्लाइंग पोर्टफोलियो अप्रोच. ठीक है. देयर अपना एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है कि लाइक कुछ चीज़ जो होती है ना, मतलब सपोज बजाज की अगर मोटरसाइकिल है तो वो मतलब उसके पास एक तरह से एक्सपीरियंस कर्व है. एक्सपीरियंस कर्व मतलब वो मार्केट में इतने ज़्यादा दिनों से मतलब होल्ड कर रखे उन्होंने अपनी वाली पोजीशन कि उनके लिए अब ना इतना ज़्यादा उनके पास लाइक रिसोर्सेज हो चुके हैं कि उनके लिए अब लाइक उनके लिए सप्लायर से लाइक कॉन्ट्रैक्ट करना, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का वो चीज़ करना, उसमें उनका एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाता. लाइक लोगों को जितना और लोगों के लिए जाता है ट्रांसपोर्ट करना, ये करना, वो उनकी मिनिमाइज हो जाती हैं वो कॉस्ट सारी. ठीक है. तो वो बोलते हैं हम उसको एक्सपीरियंस कर्व. एक्सपीरियंस कर्व से मतलब उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर उनकी गलती मिनिमम हो. ठीक है. एक्सपीरियंस से पता चलती है हम लोग को. तो वो चीज़ है. द कॉन्सेप्ट इज़ हाँ, एक लर्निंग कर्व है कि जो एक्सपीरियंस कर्व है वो एक तरह से एक लर्निंग कर्व है जो एक्सप्लेन करता है द एफिशिएंसी इंक्रीज गेन बाय वर्कर्स थ्रू रेपिटेटिव प्रोडक्ट वर्क. और पता है, हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा लगातार एक काम कर चुका है ना, उनको पता है कि कैसा मतलब मिनिमम टाइम में कैसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करना है. ठीक है. तो वो चीज़ हो जाती है. एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिनन दैट यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज द फर्म एक्यूमुलेट्स एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन. कूल. इतनी बार तुम प्रोडक्शन कर चुके हो जिससे तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारी कहाँ पर मिनिमम मतलब कहाँ तुमको क्या करना चाहिए. ठीक है. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर ही होगा. ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है. अब इसमें बस ये है कि आप फूड इंडस्ट्री जो होती हैं उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ी ज़्यादा लाइक होती है, और अगर तुम टेक्नोलॉजी की बात करो तो उनकी थोड़ी कम होती है. ठीक है. तो उसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. ठीक है. ये बुक में भी ऐसा ही है, ICAI में भी ऐसा ही है. प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि ICAI अच्छा नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि मतलब मैं आप लोग तो शायद पहले भी जैसे आपने रीड कभी करा होगा या फिर आप करोगे तो उससे ही करोगे. तो प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि ये दोनों अलग है, सेम ही चीज़ है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन. तो इनका भी क्या है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. तो अब यार इंट्रोडक्शन वाले में क्या होता है, इस वाले फेज़ में देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन. यहाँ पर जस्ट स्टार्ट किया है उन्होंने. ठीक है. अब यहाँ पर लाइक हम लोग अभी जस्ट जस्ट एंटर करें मार्केट में. हम बहुत मतलब हम लोग बहुत वो है, अभी न्यू टू द मार्केट है हम लोग. ठीक है. तो हम लोगों ने बस स्टार्ट किया उसको. हम लोग वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा हमको ज़्यादा, हम लोग को. ठीक है. हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं. ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा. ग्रोथ सबसे सही फेज़ होता है एक मतलब उसके लिए एक बिज़नेस के लिए. तो उसमें क्या होता है, हमारे सेल्स बहुत बढ़ जाती हैं, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे जो है कंपटीशन भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो जो स्टेज होती है वो होती है ग्रोथ. अब मैच्योरिटी में क्या होता है, मैच्योरिटी में तो भाई आपका एक तरह से स्टेबिलिटी आ जाती है. ठीक है. अब इस वाले में क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट पर यूनिट इज़ लोएस्ट बिकॉज
यहाँ पर अब क्या होगा ना कि आपको इतनी अपनी पोजीशंस को अगर होल्ड करना है तो आपको थोड़ा सा तो अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रॉफिट, तभी आप वो पोजीशन होल्ड कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ के चक्कर में आपको वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट पर यूनिट थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली अगर आप ग्रोथ से देखो तो, ठीक है। यस, बट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स होती है इधर, सबसे अच्छी बात यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाती है और वो चीज़ है, ठीक है। मैगी है जैसे ये सब चीज़, ये लोग मेचोरिटी पे हैं। मैगी मतलब आजकल लाइक नूडल्स के नाम पे से मैगी याद आती है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब नेक्स्ट आ जाता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या आ जाता है कि आपकी सेल्स डिक्रीज हो जाती हैं, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो अब जैसे एग्जांपल नोकिया, तो नोकिया अब कहीं चलता है मतलब मार्केट में, तो उसकी जो है वो मतलब इसकी प्रोडक्ट साइकिल में डिक्रीज में आ गया, डिक्लाइन में आ चुका है वो, ठीक है। अब दिस इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। ये वैसे ईजी था, मतलब ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था ना, नहीं होगा, नहीं है, अच्छे से करना है हमको, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट आ जाता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, हाँ कंसल्टिंग ग्रुप, सॉरी, बीसीजी इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में। तो अब इसमें क्या है ना यार, यहाँ पर रिलेटिव मार्केट शेयर के बारे में बात हो रही है, एक हो रही है मार्केट ग्रोथ रेट के बारे में, ठीक है। तो रिलेटिव मार्केट शेयर अगर आपका हाई है, मार्केट शेयर आपका हाई है, तो मतलब इसको आप दोनों वे से पढ़ सकते हो। तो स्टार को समझ लो, फिर वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज इसमें 4 टाइप की चीज़ें होती हैं, लाइक स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड डॉग्स, ठीक है। स्टार इज़ लाइक कि मतलब इसमें ना इनकी तो मार्केट शेयर भी सबसे ज़्यादा है और इनकी ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है ना। तो मतलब इनकी तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं, जो लोग वो जो चीज़ें उनको बोलते हैं स्टार प्रोडक्ट जो होता है, मतलब वो होता है ये। फिर सेकंड क्वेश्चन मार्क इट्स लाइक कि उसको पता नहीं है कि हाँ मतलब ये आगे, मतलब अभी जो है मार्केट शेयर तो कम है बट ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट शेयर अभी कम है, रिलेटिवली अभी कम है, बट मार्केट ग्रोथ रेट तो बहुत है, मतलब अभी भी ये क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है अगर वो अपनी मार्केट शेयर पे इम्प्रूव करे तो, ठीक है। अब लो पे आ जाते हैं, लो और हाई, ठीक है। तो उसमें क्या है, कैश काउ सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि कैश काउस में क्या है ना कि हमारा मतलब हमने बस पहले जो जैसे सपोज एप्पल के लिए आईपॉड्स कैश काउज हैं, अब जो बन गए मतलब अब वो आगे प्रोड्यूस नहीं करने वाले। अगर उसकी कोई सपोज उसकी सेल हो जाती है तो वो एक तरह से उनके लिए बेनिफिट है, उनके लिए कोई नुकसान तो वो नहीं रहा क्योंकि वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका क्या है, मार्केट ग्रोथ रेट तो उसका कम ही है, मतलब कोई बढ़ने नहीं वाला, बट फिर भी उसका रिलेटिवली मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा उसका हाई है। मतलब अगर तुम अभी भी अगर कोई म्यूज़िक का कोई शौकीन है और अगर वो कुछ इस टाइप का लेगा तो आईपॉड ही लेगा, फिर वो मतलब वैसे सबसे बेस्ट ही लेगा। तो अगर वो आईपॉड ही लेगा, कुछ वैसे और कुछ चीज़ नहीं लेगा, है ना। तो कैश का उसमें आ जाता है। डॉग मतलब वो बेकार है, मतलब बिल्कुल ही कि ना तो उसकी ग्रोथ रेट हो रही है ना ही वो मार्केट शेयर में। अगर नोकिया के आप पुराने फ़ोन्स के बारे में ऐसे देखो तो बोल सकते हो ऐसा वाला, ठीक है। हाँ, फिर आपका आ जाता है, ओके हमारा कितना बचा है चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, ज़्यादा नहीं बचा यार, इजी है ये वाला। पता है यार लास्ट पार्ट मेरे को बहुत इजी लगता है वाला। स्टार्टिंग में तो मैंने इसलिए आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्योंकि स्टार्टिंग ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब चीज़ें जो थी ना वो हम पढ़ नहीं सकते, अपने आप पढ़ने का मन नहीं करता। बट ये क्या है ना, इसे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में हम डिवाइडेड हैं, तो आई थिंक ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से आप भी पढ़ सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको फिर भी अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो अब इसमें क्या है, एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट, एक मिनट, यही है ना, हाँ। अब इसमें ना, हाँ बट ये जो है ना, जो मैंने आपको डॉग तक जो बताया था उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है द 4 स्ट्रेटजीज दैट कैन बी परस्यूड आर, जो 4 जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपको परस्यू कैसे करनी है, लाइक बिल्ड कौन सा करना है, होल्ड कौन सा करना है, हार्वेस्ट कौन सा करना है और डाइवेस्ट कौन सा करना है, ठीक है। हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर, सो इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इन फेवर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद लार्ज मार्केट शेयर। कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि हमको अगर मार्केट में शेयर अच्छा चाहिए होता है तो हमको थोड़ा सा जो प्रॉफिट पर यूनिट है ना उसको थोड़ा सा जाने देना चाहिए, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग को जाने दो। जैसे जियो ने करा था, उसने क्या किया था, उसने शॉर्ट टर्म जो अर्निंग थी स्टार्टिंग में उसने बिल्कुल फ्री जैसा दिया, फिर अब तो खैर कमा ही रहा है वो, तो वो चीज़ है। होल्ड क्या करना चाहिए, होल्ड आपको करनी चाहिए, ये मैंने लिखा क्यों नहीं है यहाँ पर, हाँ होल्ड। तो बिल्ड तो आपको करना चाहिए, जैसे सेकंड, हाँ। सो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि स्ट्रेटजीज फॉर, जो ये अपने मेटाफर्स जो हमने पढ़े थे, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स, तो उसमें क्या है कि पहला बिल्ड जो है क्वेश्चन मार्क, बिल्ड आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क को बिल्ड करना चाहिए। देखो क्योंकि क्वेश्चन मार्क का यार देखा जाए तो हमारा ग्रोथ रेट तो हाई है ही, बट बस मार्केट शेयर कम है। मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज, मतलब मार्केट शेयर अगर तुम इंक्रीज कर दो तो वो स्टार बन सकता है। तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर क्वेश्चन मार्क को तुम्हें बिल्ड करना चाहिए। होल्ड किसे करना चाहिए, स्टार को,
स्टार को तुमको होल्ड करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी वो मेचोरिटी पे है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको होल्ड करो। हार्वेस्ट किस पे करो? हार्वेस्ट तुम करो कैश का उस पर, ठीक है, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है आपका शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, तो उसको हार्वेस्ट करो, ठीक है। और डाइवेस्ट मतलब लिक्विडेट कर दो, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दो, डेट इज़ योर डॉग, बिकॉज इट इज़ नॉट इवन, मतलब आपको ना तो उसके मार्केट शेयर ज़्यादा है, ना ही उसकी ग्रोथ रेट बिल्कुल कम है, तो वो बेकार ही आपका मतलब पड़े पड़े आपका ख़राब ही कर रहा है, वो पैसे ही वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आ गया आपका। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है आपका ये, हाँ, एनसॉफ प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। तो एनसॉफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? मार्केट प्रोडक्शन, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये 4 चीज़ें जो हैं आपकी ICAI में गिवन है यहाँ पर, 4 चीज़ें वो ही है यहाँ पर, तो हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, ठीक है। सो अब यार ये तो काफ़ी एनसॉफ वाला, तो देखो डेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सही है। तो लेट्स जस्ट फिर से अच्छे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ वाला मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब ये थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब हमको क्या करना होगा कि हम लोग को, जैसे सपोज कैडबरी है, तो कैडबरी लाइक चॉकलेट जो थी हमको ऐसी डूज मिल रही थी, बट हमने सोचा कि आप जैसे थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल जैसे आपको गिफ्ट कर सको, तो एक आपने कैडबरी बॉक्स बना दिया, तो वो क्या थोड़ा सा चेंज है, बट उस थोड़े के चेंज की वजह से आपका मतलब थोड़ा मार्केट में तो उसकी इंक्रीज़ हुई ना वैल्यू। तो ये एनसॉफ का मार्केट का ये मतलब प्रोडक्ट के लिए, मार्केट ग्रोथ के लिए ये 4 चीज़ें हैं। या तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ क्या करो, एग्जिस्टिंग मार्केट में रखो और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही रखो, बस थोड़ा सा चेंज कर दो। या फिर आप क्या करो, एग्जिस्टिंग मार्केट में रखो बट न्यू प्रोडक्ट ले आओ। आपका मार्केट तो वो सेम ही है बट, ठीक है, बट फिर आप ना उसमें उसका थोड़ा सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दो। डेवलपमेंट मतलब कि सपोज़ आप इंडिया ही मार्केट है आपका, और आपका सपोज़ कार का सपोज़ कुछ है, तो आप जो मतलब पुराना मॉडल था उसे चेंज करके नैनो की जगह आप कुछ इग्निस लिया है, तो वो चीज़ आपका आ जाता है, तो वो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाता है। फिर मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है ना कि आप जो है अपना लाइक, मतलब आप यहाँ पर सपोज इंडिया में सेल कर रहे थे, तो आप इंडिया में ना सेल करके आप फॉरेन आउटसाइड भी करो। जैसे हल्दीराम था, हल्दीराम पहले सिर्फ इंडिया में था, पहले तो सिर्फ दिल्ली में था, फिर इंडिया, फिर ऐसा हल्दीराम फिर दिल्ली, हाँ जो भी है, तो इंडिया में था, फिर उसने इंक्रीज़ करके अपना फॉरेन में भी अब उसकी हैं, ठीक है। तो वो मार्केट डेवलपमेंट हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो जाता है कि आप ऑल टुगेदर अपना कुछ और ही कर लो। लाइक मतलब सपोज़ कुछ आप काम कर रहे थे, गोदरेज है सपोज़, गोदरेज तो वो लॉक्स वगैरह बनाता है, ठीक है, वो उसके शैम्पू वगैरह बना रहा है, तो एकदम से गोदरेज के मतलब उसने अपनी एग्स वगैरह लाइक उसने एग्रीकल्चर में अपना कर दिया, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, तो एक तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया। तो ये 4 चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से लाइक अपना, अगर किसी को ग्रो करना होता है, अपना प्रोडक्ट निकालना होता है, तो वो इन 4 चीज़ों में कुछ करेगा, है ना, और तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब ये वाला एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है। आई होप ये क्लियर हो गया। इसके अंदर आप पढ़िएगा तो बहुत कुछ है नहीं डिफरेंस, सही में। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब थोड़ा सा चेंज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कि आप उसका प्रोडक्ट डिफरेंट कर दो, बट आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट होनी चाहिए। आपका मार्केट डेवलपमेंट में क्या है कि न्यू मार्केट है बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देन डाइवर्सिफिकेशन में न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट, ओके यस। उसके बाद फिर आपका ADL मैट्रिसेस आ जाता है, ठीक है। ADL मैट्रिसेस में क्या आ जाता है ना आपका, जस्ट अ सेकेंड। सो ADL क्या होता है? ADL मैट्रिक्स जो होती है ना, वो एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक होती है, ठीक है। ये भी एक पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए एक टेक्निक होती है, जो कि बेस्ड होती है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। मतलब ऐसा ना आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसा है, लाइक सपोज इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ जो है उसके हिसाब से आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दिस अप्रोच the approach forms 2-dimensional metrics based on stages of industry maturity, ठीक है, एंड द फर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कि वो कितना मेचोरिटी पे और क्या उसकी क्या उसकी वो पोजीशन क्या है मार्केट में, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो है ना आपका, ये वाली जो ADL मैट्रिक्स जो होती है ना, वो क्या करती है, आपको कैटेगराइज कर देती है जो प्रोडक्ट को, और जो मतलब SBU को, उसको 5 चीज़ों में मतलब वो कर देती है, अपना डिवाइड कर देती है। लाइक मतलब ऐसा हो सकता है कि या तो इट इज़ 4/5 मैट्रिक्स, तो 4/5 मैट्रिक्स है जिसमें क्या है कि या तो डोमिनेंट होगी, या कोई जो सपोज़ कोई SBU है या कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की वो चीज़ है, तो वो या तो भाई डोमिनेंट होगा या स्ट्रॉन्ग होगा या फिर फेवरेबल होगा या टेनेबल होगा या फिर बहुत ज़्यादा वीक होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कुछ होगा, और इसमें इसका ये तो हो गया 5, और 4 क्या, एम्ब्रॉनिक होगा, ग्रोथ होगा, मेचोरिटी होगा, एजिंग होगा। तो ये 4 चीज़ों के हिसाब से ही हो सकता है, ठीक है।
तो मतलब ऐसा ना डोमिनेंट है, तो मतलब डोमिनेंट का भी इसमें कौन सा वाला चीज़ है, लाइक कि फास्ट ग्रो है, बिल्ड बैरियर, एक्ट ऑफेंसिवली। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इसको आप पढ़िएगा, मतलब इसमें पता है क्या है, इसमें ये है कि डोमिनेंट मतलब इसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है डोमिनेंट, ठीक है। बट अब इसका सपोज मेचोरिटी है, तो मेचोरिटी मतलब कि हाँ अभी इसका जो डिफेंसिव पोजीशन, ओके एक मिनट guys, even I am studying for the first time. For the next lecture I will make sure that I'll study the whole chapter properly, then only I will make a video. I have thought that, ठीक है। तो मतलब इसमें ऐसा बताना चाह रहे हैं कि ये वाला चीज़ मैं आपको ना लाइक बेसिकली जितना मेरे को पता है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और किसी लेक्चर में या तो मैं आपको बता दूँगी समझ के क्या है ये। तो उसमें बस ये चीज़ है कि लाइक जो डोमिनेंट है तो उसमें मोनोपली और स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड जो लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग या तो डोमिनेंट होगा या स्ट्रॉन्ग होगा या फेवरेबल होगा, टेनेबल होगा। टेनेबल मतलब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग है तो मतलब हाँ अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। डोमिनेंट में क्या है, डोमिनेंट में जैसे IRCTC है तो या फिर MS विंडोज़ है, वो डोमिनेंट है। इनसे लाइक MS विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो मतलब अलग ही है, उसकी जैसा कोई है ही नहीं, वो डोमिनेंट है। उसका अगर तुम शेयर आप देखोगे तो शेयर सबसे ज़्यादा उसका ही है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग में क्या है, स्ट्रॉन्ग में ऐसा है कि लाइक एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, हाँ मतलब ये लोग हैं, लेकिन पर ये नहीं कि सिर्फ यही है, स्ट्रॉन्ग है, ये डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। फेवरेबल मतलब क्या हो गया, जैसे MI हो गया, लाइक सैमसंग हो गया, ये सब क्या है, फेवरेबल हैं, मतलब हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं बट ये अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं वो अलग बात है। टेनेबल क्या होता है, टेनेबल का मतलब हो जाता है कि मतलब आपको ना ऐसा लगता हो कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर क्यों मतलब फालतू में यहाँ पर जैसे मैं हूँ, जैसे विस्तारा है, अगर उसको एयरलाइन की उसमें इंडस्ट्री में लगता होगा कि कहाँ इंडिगो कहाँ ही वो फालतू में, एक तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा महंगे वो देता है, एक्स्ट्रा लग्जरी वगैरह भी प्रोवाइड करता है, बट उस फिर भी इतना चलता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वहाँ पर वो टेनेबल थोड़ा फील करता है। वीक तो मतलब कि अब तो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन टाइप्स, ठीक है। तो जैसे कोडक हो गया, जो उसके कैमरे आते थे, या फिर नोकिया हो गया, वो आउट ऑफ द बॉक्स हो गए, आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन हो गए, ठीक है। अब एक आ जाता है GE मॉडल। GE मॉडल में क्या होता है, GE मॉडल, राइट। सो GE मॉडल में क्या है कि आपका जैसे मार्केट अट्रैक्टिवनेस और इसमें बिजनेस स्ट्रेंथ इन इंडस्ट्री, तो ये 3 चीज़ों में होता है, मतलब 9 मतलब 3x3 होता है ऐसा वाला। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर या तो आपकी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताती हूँ यार। GE मॉडल जो है ना वो ADL से थोड़ा सा उसका ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है। उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट शेयर अगर आपका ज़्यादा है तो वो आपका ही सिर्फ ही एक एलिमेंट है स्ट्रॉन्गनेस के लिए। GE में क्या होता है ना कि आपकी स्ट्रॉन्गनेस के और भी एलिमेंट्स को कंसिडर करा जाता है, ठीक है। और फिर आपको देखा जाता है कि मतलब क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए या फिर डाइवेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो होती है आपको एक पूरा मतलब एक तरह से आपको क्लियर बताता है कि आपको क्या मार्केट में अभी क्या मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो सपोज एक तरफ हम लेते हैं मार्केट स्ट्रेंथ इन बिजनेस स्ट्रेंथ इन इंडस्ट्री, एक तरफ हम लेते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो फर्स्ट क्या रहता है, फर्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग और हाई। अगर आपकी मार्केट स्ट्रेंथ वो बिजनेस स्ट्रेंथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है और आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी आपकी हाई है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि बिजनेस स्ट्रेंथ हमारी एवरेज है बट मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत है, तो आपको भी फिर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आपकी वो अगर वीक है और बिजनेस पर फिर भी मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ही है, तब भी आपको वहाँ पर होल्ड करना चाहिए। लाइक अगर आपका हाई है मार्केट अट्रैक्टिवनेस तो अगर आपका हाई है मार्केट अट्रैक्टिवनेस तो आपको वहाँ पर इन्वेस्ट या फिर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो यार अट्रैक्टिव मतलब वहाँ पर अभी डिमांड है ना, मतलब कस्टमर उस चीज़ के लिए उस मार्केट में है अभी रेडी अपना पैसा लगाने के लिए, तो आपको वहाँ पर करना चाहिए कि एफर्ट्स डाले रहना चाहिए। क्या पता कस्टमर मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है तो आपकी भी पास आ ही जाए, और आपकी अगर स्ट्रेंथ जैसी भी होगी उस हिसाब से हम देखते हैं। मार्केट अट्रैक्टिवनेस अगर आपकी मीडियम है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है मार्केट बिजनेस स्ट्रेंथ। अगर आपको बिजनेस स्ट्रेंथ अगर आपकी एवरेज है तो आपको जो है मतलब होल्ड करना चाहिए। अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ अगर वीक है तो फिर आप डाइवेस्ट कर दो, क्योंकि मार्केट अट्रैक्टिवनेस उसमें मतलब मीडियम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं और आपकी वैसी वीक है स्ट्रेंथ, तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो मार्केट अट्रैक्टिवनेस आपकी लो है तो अगर
अगर जो है बिजनेस स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको होल्ड करना चाहिए, एवरेज है तो आपको डाइवेस्ट करना चाहिए, एवरेज है तो डाइवेस्ट कर दो, ठीक है, इसमें डाइवेस्ट कर दो, क्योंकि वैसे ही यार कस्टमर रेडी नहीं है आपको मतलब वहाँ पर आने के लिए, उस फील्ड मतलब वहाँ पर इतना स्कोप नहीं दिख रहा आपको, तो फिर वहाँ पर मत करो। अगर आप एवरेज हो, अगर बेस्ट हो तभी रहो वहाँ पर, ठीक है, अगर वीक है तब भी आप डाइवेस्ट कर दो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्वॉट एनालिसिस। वाह, स्वॉट एनालिसिस तो ये तो अपना बचपन का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि जो लाइक ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हो सकती है कि मतलब हमारा एक स्ट्रिक्ट हमारा पूरा डिसिप्लिन एक एनवायरनमेंट है हमारा, वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो एक तरह से हमारी स्ट्रेंथ है, वहाँ पर सारे के सारे बहुत अच्छे जो लाइक जो प्रोफेशनल्स लोग जो हैं वही हायर्ड हैं, ऐसा कह सकते हो, तो वो एक आपकी स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस क्या हो गया, इनहेरेंट लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी ऐसी हो सकती है, मैनेजमेंट बेकार है, तो वो तो एक तरह से हमारी वीकनेस हो गई ना। वो बाहर से चाहे दुनिया कैसी भी अच्छी हो बुरी हो, अगर आपका मैनेजमेंट ही अगर बेकार है तो कैसे होगा। अपॉर्चुनिटी मतलब अगर कोई फेवरेबल कंडीशंस अगर आपकी आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। थ्रेट्स, अनफेवरेबल कंडीशन, ओके। सो दिस इज़ ऑल। फिर सिग्निफिकेंस, ये तो यार बचपन में पढ़ा था, हम देख लेंगे। फिर अब ये TOWS मैट्रिक्स, हम लोग टॉस जो मैट्रिक्स है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें STWT, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लाइक इसके मैं आपको ना जो वो चीज़ जो है हम लोग ये बता देती हूँ आपको, क्या है ये वाला जो मतलब ये आपके पास भी होगा यार, इस बुक में भी एक डायग्राम जो बना रखा है इन्होंने, सेम है मटेरियल, जस्ट डोंट वरी कि मटेरियल डिफरेंट है, जस्ट दैट कि मैंने यहाँ पर अपनी नोटिंग्स कर रखी थी जो लाइक लेक्चर्स लेते हुए, सो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट विद यू, सो दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग इट। जस्ट डोंट थिंक कि दिस इज़ नॉट अ ICI ही है, सेम है, आप प्लीज़ ऐसा मत समझना आप लोग, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या होता है ना कि इसमें दो टाइप के एनवायरनमेंट मतलब एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल एलिमेंट्स, एक होता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स। अब इंटरनल एलिमेंट्स में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, जैसे हमने पहले पढ़ा था उसमें अपना कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, तो हम लोग वो तो उसको हम लोग ना लाइक किसी से कंपेयर नहीं कर रहे थे, इसमें हम दो एलिमेंट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं, उसमें हम बस एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, तो वो बस वैसे हम पढ़ रहे थे, बट इसमें हम लोग थोड़ा अलग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो फैक्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे और उसको हम देखेंगे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज हमारा स्ट्रेंथ भी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी है और हमको अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग हमारे लिए क्या होगा, ये मैक्स हमारा मैक्सी ओके, मैक्स मतलब हमारा एक बहुत अच्छा फेवरेबल पोजीशन है हमारे लिए, तो हमको कंटिन्यू करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को अगर एक साथ अगर हम यूज़ करेंगे तब हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमारा। सेकंड में क्या है, WO और WO, मतलब W में क्या होगा कि वीकनेस भी है बट अपॉर्चुनिटी भी है। अब वीकनेस है हमारी, लग रहा है मेरे को कि हाँ यार मैं मतलब सपोज कोचिंग इंडस्ट्री है तो अगर मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बट हाँ लग रहा है कि यार डिमांड बहुत है बिकॉज कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटी बहुत है ना, तो यहाँ पर मिनिमम मैक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं नहीं पढ़ाने वाली, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद फिर ST, तो ST में क्या जाता है आपका कि स्ट्रेंथ भी है और थ्रेट भी है, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेंथ है और थ्रेट है, मतलब डर है यार, डर है कि हो सकता है, बट हम क्या कर सकते हैं कि अपने थ्रेट्स जो है ना उनको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो बट ये एक हमारी एक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। और WT में क्या होता है, WT इज़ लाइक कि मिनी दोनों चीज़ें, W भी भाई वीकनेस भी और थ्रेट भी, तब तो फिर वहाँ पर तो जाना ही नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके डिफ्रेंसिएशन क्या है, मतलब डिफरेंसेस क्या है इसके, लाइक स्वॉट के और टॉस के। तो स्वॉट जो होता है ना आपको बताता है कि इट सेज व्हाट यू आर, आप क्या हो, बट टॉस जो है आपको एक तरह से रिकमेंड करता है कि आपको क्या होना चाहिए, व्हाट यू शुड बी, ठीक है। स्वॉट जो है इट इज़ थ्योरी ओरिएंटेड, बट टॉस जो है इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड। स्वॉट जो है इट कंसिडर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सेपरेटली, जो स्वॉट जो है आपका वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को सेपरेटली मतलब कंसिडर करता है, बट जो टॉस जो है वो कंसिडर करता है एक्सटर्नल को भी इंटरनल को भी एक साथ लेके, ठीक है। स्वॉट जो है उसमें वो इंडिपेंडेंट है, बट टॉस जो है उसमें डिपेंड करता है वो स्वॉट के ऊपर, मतलब जो स्वॉट जो है उसकी मतलब तभी तो उसको लाइक दो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को हम कर रहे हैं, तो हमको जब तक स्वॉट में नहीं पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या है, तो हम लोग कैसे मतलब बता पाएंगे, कैसे रिकमेंड कर पाएंगे, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्वॉट, ठीक है।
सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ग्लोबलाइजेशन तो आई होप आप लोग को सबको पता ही होगा क्या है. चलिए मैं आपको बस, आप एक बार ऐसे रीड कर लीजिए, मैं भी बस थोड़ा सा एक बार इसका पढ़ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ. सेकेंड, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? मेकिंग द वर्ल्ड अ सिंगल मार्केट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक यू नो कि जो डोमेस्टिक बैरियर्स जो होते हैं दे डोंट डिफाइन कि आपको यहाँ पर सेल करना है वहाँ पर सेल करना है. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, अगर आप उसके बारे में बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, कि उसमें क्या होता है कि आप इंटीग्रेशन होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. मतलब लाइक कि आगे जो फॉरेन जो एमएनसीज वगैरह होती हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आ रही होती है, हम दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं. दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ दैट कि जो फॉरेन की जो कंट्रीज़ आई हैं हमारे इंडिया में, एंड हम जो लाइक इंडिया के डोमेस्टिक जो वो है लाइक डोमेस्टिक जो कंट्री के हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग कैसे कम्पीट करेंगे, तो वो भी एक ग्लोबलाइजेशन के पार्ट में आता है. ठीक है, वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, तो ये सब चीज़ें तो आई थिंक एक बार आप रीड कर लीजिएगा और द चैप्टर इज़ ओवर. सो फाइनली आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि हाँ, आई एम नॉट दैट, मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई एम रियलाइजिंग दैट दिस सेशन इज़ like fine, this section, okay, the benefits of this session is like, okay, let me tell you the benefits and the disadvantages both. okay, benefits are कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक जैसे लाइक अगर आपको ना अपने कोई एज का या फिर अपने जैसा कोई एक्सप्लेन करता है, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मेरे को कोई फ्रेंड बता दे तो वो अच्छे से याद रहता है वो चीज़. तो आप भी एक तरह से समझिए कि मैं आपको एक तरह से फ्रेंड के हिसाब से बता रही हूँ. सो उससे आपको क्या हो गया, पूरा चैप्टर का इंसाइट मिल गया. आपको लगेगा कि मैं भी पढ़ रही हूँ ना, मैंने भी तो पूरा पढ़ा ना, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि उसने भी तो पढ़ा अच्छे से, या उसने भी तो पढ़ रही है वो, और उसके मैं भी इसके बाद भी पढ़ने वाली हूँ. सो आप लोग भी पढ़ना है आपको भी. ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया. सेकेंड चीज़ ये हो गया कि नेक्स्ट टाइम से आई विल बी कवरिंग कि ऐसा मैं अच्छे से करूँगी कि अब आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से. लाइक इसमें भी आई ट्राइड माई बेस्ट, बट सिंस ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मेरे को उतना पता नहीं था. बट अब आई एम एट द स्टेज कि ओके, व्हाट आई हैव टू explain and how I have to explain, so that will be very clear now. Okay, and so this is all. I hope you like it, and for more, like if you want me to give some suggestions कि आप ऐसा करो वैसा करो, जो जैसे भी करना है, just please tell me so that I improve upon it. And we have to study. Just don't forget that we are in a chartered accountancy course, and we just want to become the world leader, right? So all the very best. I hope this chapter is clear now. And yeah, if you have anything like any doubts and queries, so just please tell me, so I will be taking it later. Whatever you say, then just I will do it. Okay, so bye bye, take care, all the best, study properly. And yeah, this chapter is very interesting. I hope you liked it. And okay, bye bye, take care.